السلام علیکم, گڈ مارننگ. صبح 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے. اور آج کے پروگرام میں ایک خاص بات آپ کو جلدی سے بتاتی چلوں کہ آج کے پروگرام میں سیکنڈ آور میں 10 بجے کے بعد جو ہمارا سیگمنٹ شروع ہوگا اس کے لیے ٹیگ لائن یا ہمارا سبجیکٹ آپ کے لیے یہ ہے, اب گاڑی سب کے لیے. اب گاڑی سب کے لیے. اس سے ہماری کیا مراد ہے یہ آپ کو میں سیکنڈ ہاف میں ہی بتاؤں گی. گاڑی سب کے لیے اور اس بارے میں سیکنڈ ہاف میں آپ کو بتاؤں گی. فرسٹ ہاف میں آبویسلی آج کیونکہ جمعہ ہے, جمعے کا دن آپ سب کو بہت مبارک ہو, فضیلتوں بھرا یہ دن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عشرہ بھی ہے رمضان المبارک کا, تو اس حوالے سے بھی ہمیں ڈسکشن کرنی ہے. فرسٹ آور میں ہم اس بارے میں بات کریں گے. اینڈ آج جو میرا یہ ڈریس ہے دس از بائی آغا نور, یہ ان کا ایک ڈفرینٹ کمبینیشن ہے. یہ فون کے ساتھ آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ کمبینیشن میں ٹراؤزرز اور دوپٹے وغیرہ میچ کر سکتے ہیں. تو دس از اے بیوٹیفل ڈیزائن بائی آغا نور. ایک کہانی بھی آج میرے پاس ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں, بلکہ یہاں آتی ہوں تاکہ آپ میرا ڈریس بھی دیکھیں اور مجھے میری باتیں بھی سنیں. ایک کہانی جو آج میرے پاس بڑی خوبصورت ہے, ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی آپ نے اسے ایک ڈفرینٹ اینگل سے سوشل میڈیا پہ یا کہیں سنا ضرور ہو, لیکن میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں اور بہت خوبصورت میسج ہے اس کے اندر. ایک دن ایک امیر باپ اپنی بیٹی کو ایک گاؤں لے کر گیا کہ اسے دکھا سکے کہ غریب لوگ کیسے ہوتے ہیں. انہوں نے غریب خاندان کے ساتھ ان کے گھر اور کھیتوں میں وقت گزارا. واپسی پر باپ نے بیٹی سے پوچھا کہ تم نے دیکھا کہ غریب لوگ کیسے گزر بسر کرتے ہیں, تم نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ بیٹی نے جواب دیا, ہمارے گھر میں تالاب ہے, ان کے پاس دریا ہے. ہمارے گھر میں رات کو برقی کمکمے جگمگاتے ہیں, ان کے پاس ستارے ہیں. ہم خوراک خریدتے ہیں, وہ خوراک اگاتے ہیں. ہماری حفاظت کے لیے گھر کی لمبی دیواریں ہیں, ان کی حفاظت کے لیے ان کے دوست ہیں. ہمارے پاس انسائکلوپیڈیا ہے, ان کے پاس قرآن ہے. ڈیڈی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہ دکھایا کہ ہم کتنے غریب ہیں. تو اس کا مورل یہ ہے, صرف دولت ہی انسان کو امیر نہیں بناتی, بلکہ سادگی اور اللہ پر یقین آپ کو امیر بنا دیتا ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. اس میں کچھ چیزیں خیر کیونکہ یہ ایک فینٹیسائز کر کے اسٹوری بنائی جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سی چیزوں میں اکتفا نہ کریں, لیکن یہ میرے ان ویورز کے لیے ہے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, جو ہمارے شوز دیکھتے ہیں, جو ٹیلی ویژن پر مختلف چیزیں دیکھتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ شہر کی زندگی بہت فیسینیٹنگ ہے, شہر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں یا بڑے خوش نصیب ہیں. تو خوش نصیب کا پیمانہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے, خوش نصیب کا یہ پیمانہ نہیں کہ آپ کے گھر میں کتنے جنریٹرز یا اے سیز ہیں, لیکن ہاں خوش نصیبی کا ایک ضرور میرے خیال میں ایک ایلیمنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ دل سے خوش ہیں اور مطمئن ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ بڑی رحمتیں ہیں, اور دل کا اطمینان بڑی ہی نعمت ہے, اور دل کا اضطراب بڑی ہی مصیبت والی چیز ہے. تو اگر دل کا اطمینان اور دل کا سکون آپ کے پاس ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں, اور اسی پوائنٹ کو آج میں اجاگر کرنا چاہتی تھی. اب ہم اپنے مہمانوں کے یہاں مدعو کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, آپ کی کال بھی لیں گے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں obviously about the subject, جو ہمارا سبجیکٹ جمعے کا بھی ہے اور پھر دوسرے عشرے کے حوالے سے, عشرہ مغفرت کے حوالے سے بھی ہے. ہمارے ساتھ مولانا شہریار داؤد اس وقت موجود ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں, بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں. السلام علیکم, ٹھیک ٹھاک ہے مولانا صاحب, پلیز بیٹھیے. علامہ عاصم صدیقی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, تشریف لائیے. السلام علیکم. دعا نور ہیں, دعا نور کو کیونکہ میں یہاں بٹھانا چاہتی ہوں تو دعا نور بھی اگر آ جائیں, جلدی آ جائیں جلدی. بہت پیاری سی دعا نور تو ہیں, ان کی انٹری تو بڑی مزیدار ہے. تیز آؤ نا دعا. کتنے سال کی ہو گئی مائک میں بتاؤ؟ 8 سال کی ہو گئی, تو تیزی سے آنا چاہیے نا. دعا تو میرے خیال میں جب 5-6 سال کی تھی جب سے آ رہی ہیں ٹی وی چینلز پہ, اور آپ جانتے ہی ہیں ایک تو بہت اچھی حمد و نعت خواں تو ہے ہی,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا انداز بیاں ہے نا اور انداز جو اس وقت ہوتا ہے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ بڑے ہی مزیدار ہوتے ہیں. تو دعا تھینک یو سو مچ آپ آئیں, آپ یہاں پر آپ ان کو اپنے پاس میں چاہتی ہوں بٹھا لیجیے. اینڈ ہمارے ساتھ ہیں منیبہ نصیر صاحبہ جو کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کی حیثیت سے آج ہم نے ان کو بلایا ہے اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں ینگر جنریشن جو ہے ہم اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں, بہت سی باتیں کرتے ہیں, لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن ہمارے مذہبی معاملات میں بھی مذہبی معاملات میں بھی کس طرح سے ہمارے ینگر جنریشن ہمارے مذہبی معاملات کو دیکھتی ہے, اس حوالے سے بھی ہم نے آج ان سے بات کرنی ہے. اینڈ وی ہیو فاطمہ حافظ صاحبہ جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ پی ٹی وی کی اسکرین پر ان کو آلریڈی دیکھ رہے ہیں. آ جائیے مجھے بولنے دیا کیجیے, آپ لوگ آ جایا کیجیے. آئیے, السلام علیکم, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ فاطمہ صاحبہ یہاں آئیے. آپ لوگ میرے قریب کیوں نہیں بیٹھنا چاہ رہے یہ بتائیں؟ جس کو دیکھو اس والے سوفے پہ جا رہا ہے. کوئی خاص بات؟ ہم انسٹرکشن فالو کر رہے ہیں. انسٹرکشن غلط فالو کیے آپ لوگوں نے, یہاں بیٹھے ہیں آپ. چلیں خیر, کیونکہ ہمارے ساتھ دعا بھی ہیں اور آج جمعے کا دن بھی ہے تو ہم پہلے دعا سے گزارش ہے کہ ہم سے شروعات کریں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ, سبحان
माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब, बहुत ही मज़ेदार। हाँ, बहुत ही अच्छे, बहुत मज़ा आया। और अब हम अपनी मज़ेदार गुफ्तगू को भी यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि आज के दिन की मेरे ख्याल में एक और फजीलत ये होती है कि हम बहुत सी बातें अपने दीन के हवाले से जो आम तौर से शायद हम उस तरह से, मैं ये तो नहीं कहती कि हमारी नीयत नहीं होती, लेकिन हम उस तरह से इस जानिब मुतवज्जा नहीं होते जितना हम जुमे वाले दिन ज़्यादा अपने दीन के हवाले से और इन मामलात के हवाले से मुतवज्जा होना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और मौलाना शहरियार से हम शुरुआत करेंगे। मौलाना साहब, जुमे के दिन के बारे में भी हम बात कर रहे हैं और दूसरे अशरे के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो क्या बयान फरमाएंगे आप? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम मनबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक सल्लम। माह रमज़ानुल मुबारक, जिसकी बेबहा बरकतें हैं, रहमतें हैं, उसका दूसरा अशरा चल रहा है। दूसरा अशरा का पहला जुम्मा है। अभी इस अशरे में 2 जुमे आएंगे इंशाअल्लाह। अभी 13वें को आया है, और फिर इंशाअल्लाह 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 को इंशाअल्लाह और अजीज अल्लाह अंसार 21 को या 20 को आएगा इंशाअल्लाह और अजीज। दूसरा जुम्मा भी उम्मीद है इसी अशरे का मिलेगा। जुम्मे की खालिस गैर रमज़ान में जुम्मे की फजीलतों में यही काफ़ी है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है, एक साथ ऐसी आती है कि उस वक्त हर दुआ जायज़ कबूल हो जाती है। फिर ये आ जाए रमज़ान में तो वो साथ अल्लाह की ज़ात से हमारा कवी उम्मीद है कि वो साथें बढ़ जाती हैं, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान के जुमा में अल्लाह ताला हर साथ में हर घड़ी में 10 लाख ऐसे लोगों को जन्नम से आज़ाद करता है जिन पर जन्नम वाजिब हो चुकी है। तो इट मीन्स के रमज़ानुल मुबारक में जो जुमा है बहुत कीमती है। रमज़ान की वैसे तो हर घड़ी बहुत कीमती है, लेकिन ये वो माह मुबारक है जिसके बारे में आक़ा अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस माह मुबारक में जो गुनहगारों के लिए बड़ी यानी कि हौसला अफजा बात है कि एक तो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे पूरे महीने के लिए खोल दिए जाते हैं। अब पूरे महीने में जन्नत के दरवाजे बंद नहीं होंगे। फिर निदा होती है फ्रॉम वेरी फर्स्ट नाइट, है कोई खैर मांगने वाला उसको खैर दी जाए, है कोई बरकत मांगने वाला उसको बरकत दी जाए। मीन्स अल्लाह ताला की तरफ से निदाएं यानी अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं। खुश नसीब है वो जो इन अनाउंसमेंट्स को सुनता है और फिर से लब्बैक कहता है और अपने आप को मोटिवेट करके अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ फॉरवर्ड होता है, कदम बढ़ाता है। बदकिस्मती से हम ये देखते हैं, जो हमारी डेली प्रैक्टिस है वो यही है कि हम इसके बावजूद के शैतान, बड़ा शैतान वो जकड़ दिया गया है। लेकिन कई शयातीन जो छोटे जिनको हम कह लें या हमारे अपने नफ्स के मामलात ऐसे हैं कि जो हमें मुसलसल गुनाहों पर उकसाते रहते हैं। याद रखिए कल क़यामत के दिन बंदा जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, जबकि वो जानता है कि तूने गुनाह क्यों किया। वो कहेगा या अल्लाह मुझे तो शैतान ने करवाया है। शैतान को हाजिर किया जाएगा, तूने इससे गुनाह करवाया। वो कहेगा या अल्लाह तूने मुझे ये तो ताकत दी ही नहीं थी, मैं तो इसको सिर्फ बस डालता था, मैं इसको पिन करता था, वो ये कर। तो ये चूंकि इसके खुद नफ्स में वो चीज शामिल थी, ये खुद उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहता था, करना चाहता था, कमिट करता था, इसीलिए मुझ पर खाम का इल्जाम लगाता है। तो मीन्स के बंदा चाहे तो ये जो रमजान का महीना मिला इतनी बरकतों वाला इसीलिए दिया गया कि हम कुछ मेहनत करके जो मेडिटेशन है, जो मुराकबा है, जो अल्लाह की तरफ बढ़ना है, उसकी तरफ जो हमने अपनी कंसंट्रेशन करके अपनी जो कनेक्शन बहाल करना है वो आसान हो जाता है। इसलिए माह रमजान में दिया, इसीलिए रमजान मुबारक का महीना हमारे लिए आया। जी अल्लामा साहब, आप भी इस हवाले से क्या फरमाना चाहेंगे? देखिए, अल्लामा शहरियार साहब से भी बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान मुबारक और फिर रमज़ान मुबारक के अंदर रमज़ान की जो हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर रमज़ान के वक्त इफ्तार 10 लाख ऐसे गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है कि जिनसे जहन्नम वाजिब हो गई। लेकिन जो जुमा रमज़ान मुबारक में आ जाता है उसमें हर सात पर 10 लाख जो है वो गुनाहगार जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, अल्लाह तबारक व तआला उस जुमे के दिन जो रमज़ान में है हर साथ में 10 लाख जो है वो गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। तो इसमें देखिए कि ये जुमातुल मुबारक का एक बाबरकत दिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
जुमे से ज्यादा बेहतर कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस पे सूरज चढ़ता हो और गुरूब होता हो। यानी ये जुमतुल मुबारक है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की एक और हदीस मुबारक के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल जुमा सय्यदुल अय्याम, कि जुमा जो है वो तमाम दिनों का सरदार है। और फिर एक हदीस मुबारक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया अल जुमाअतु हज्जुल फुक़रा, और एक रिवायत हज्जुल मसाकीन। ये जुमातुल मुबारक ये मिस्कीनों गरीबों का हज है। तो इसलिए जो है हमें ये देखना चाहिए कि हम इस अजीम दिन को पा रहे हैं। और एक हदीस मुबारक में तो यहाँ तक भी है कि अल्लाह के यहाँ जुमतुल मुबारक दिन इतना बड़ा है कि ये ईदैन से, ईद उल फित्र से और ईद उल अज़हा के, जिसका हम साल भर इंतजार करते हैं, ये जुमतुल मुबारक का दिन उन अय्याम ईदैन से भी अल्लाह के यहाँ बड़ा है। तो ये हमारे लिए कितना बड़ा ये दिन है कि ये अलजुमत ईद उल मुमिनीन, ये भी हदीस मुबारक में आया है कि ये मुमिनों के लिए ईद का दिन है। तो हम वक्त की इस दौर में जो है वो जुमे की फजीलतों को फरामोश करते हुए जुमतुल मुबारक के अंदर जो किए जाने वाले आमाल हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुसलमानों में जो सबसे पहली बिदअत राइज हुई वो ये कि जुमा की तरफ जल्दी जाने में सुस्ती करना शुरू कर दी। अब ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का दौर कई सदियां पहले का है। तो उस दौर से अब चलते चलते मामला यहाँ तक आ पहुँचा है कि हम घर पे बैठे हुए टीवी के सामने या हम अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं और इस इंतजार में हैं कि कब जो है वो अरबी के खुतबे का वक्त शुरू हो और मैं उठ कर जाऊँ। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सबसे पहले जुमे के लिए आता है उसे एक ऊँट जो है वो अल्लाह की राह में खैरात करने का सवाब मिलता है। जो उसके बाद आता है उसको एक गाय खैरात करने का सवाब मिलता है। फिर जो उसके बाद आता है उसको एक दुम्बा, और उसके बाद एक मुर्गी और अंडे तक मार सकती है। तो अब ये इतने ज्यादा जो है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है कि हम नेकियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर इसी तरह से कोई सेल लग जाए तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ छोड़ के पहुंच जाते हैं। लेकिन एक और चीजें भी हम जल्दी करते हैं जब हमारे पास कॉलर्स आ जाते हैं। तो आपकी इजाजत से एहसन साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, और उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, तमाम देखने वालों को सलाम और जुम्मतुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह तबारक तआला लोगों के रोजे, तरावी, सहर और इफ्तार करना और कराना और नेकियां सदक़ात फिज़राना सब कबूल मकबूल फरमाए। आपके उलमाए किराम से मेरा सवाल ये है कि एक तो ये मग़फ़िरत का अशरा है, फिर आज जुम्मतुल मुबारक है, अगला जुम्मा भी इंशाअल्लाह ताला जैसे कि फरमा रहे थे मग़फ़िरत में आएगा। इस वजह से कौन से ऐसे अमाल खास तौर पर किए जाएं, वज़ाइफ या कोई इबादत नफली जो खास इस अशरे और आज के दिन जुम्मे के हवाले से बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, जरूर बताएं। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थोड़ी देर में हम शेयर करते हैं क्योंकि बहुत सी चीजें जब जुम्मे के बारे में बात की जा रही थी फातिमा साहिबा, तो खवातीन के हवाले से मेरे जहन में आ रहा था क्योंकि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। रमजानुल मुबारक में जो जुम्मा है उसके बारे में तो आप बात करेंगी, लेकिन वैसे मैं देखती हूँ कि जब जुम्मे का दिन आता है और घर के मर्द क्योंकि मसाजिद बड़े ज़ौक़ शौक़ से जा रहे होते हैं, तैयारी भी होती है, सारी चीजें होती हैं, तो घरेलू जो खवातीन हैं उनके लिए आपको क्या लगता है क्या एहतमाम करना चाहिए? क्योंकि वो उस वक्त दोपहर के खाने और बहुत से लोगों के जुम्मे वाले दिन कोई खास डिश बनती है, वो कहते हैं जी जुम्मे को तो जब नमाज पढ़ के आते हैं तो हम बिरयानी बना के रखते हैं, बड़ी ताज़ा बिरयानी होती है, ये होता है वो होता है। तो हमारे यहाँ जो खवातीन हैं उनको जुम्मे के दिन क्या करने की ज़रूरत है इन तमाम कामों के अलावा? देखिए, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ए ईमान वालों को मुखातिब किया है। सूरह जुमा की जो आयत है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकम्मल जो आयत है वो जुमे के नाम से मंसूब की और उसमें फरमाया कि ए ईमान वालों, जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आए तो तुम लोग जो हो अल्लाह के जिक्र। अब ईमान वालों के अंदर मर्द हज़रात भी शामिल हैं और औरतें भी शामिल हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ है। वैसे तो जुम्मतुल मुबारक बहुत, जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये तमाम जो दिनों का सरदार है और फिर इसके अंदर एक ऐसी साथ है जिसमें दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल मंजूर फरमाता है। तो ये वो साथ है कि जो नमाज हम अदा कर लेते हैं, जुम्मे की जो नमाज अदा कर लेते हैं, उसके बाद असर से लेकर मगरिब के दौरान जो है उलमा किराम की जो राय है वो ये है कि वो साथ वो है उस टाइम जो है जिक्र, अज़कार,
जितनी कसरत से करते हैं, तो ये हमारी खवातीन के लिए भी ये हुक्म है। ज़ाहिर बात है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म दे दिया ईमान वालों के लिए, तो ये हुक्म सबके लिए है। और हम सब खवातीन को भी यही चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की जितनी हम जिक्र करें, जितना हम जिक्र करते रहें। और अगर देखिए, एक खातून जो होती है वो एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक बीवी भी है, तो वो एक अच्छी माँ जब भी बन सकती है जब वो खुद फॉलो अप करती है अल्लाह पाक के अहकाम को। ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, उसके बाद में मुनीबा आपकी तरफ आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप फरमाइए। आप मैं बात करना चाहता हूँ ये अलमोहतराम से, ये फरमाइए। हेलो जी जी बताइए, हम सुन रहे हैं। बात करना चाहता हूँ इनसे ये पानी के हवाले में, ये माह रमजान में रोजेदारों के लिए पानी बंद किया हुआ है हमारे इलाके में। जो हमारे इलाके की इंतजामिया हम आपके तवज्जो से जो है कि बात। ठीक है जी, ऑन एयर बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। मुनीबा, पहले आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपको बुलाने का यह मकसद भी यही था कि हमारी यंगर जनरेशन कभी कभी तो बहुत तनकीद का निशाना बनती है कि नहीं जी, हमारे यहाँ यंगर लॉट जो है वो ज़्यादा मजहब की जानिब उस तरह से रमा दवा नहीं है जैसे उनके वालिदैन या उनके बड़े रहे। आपको क्या लगता है, लड़कियों के बारे में भी, लड़कों के बारे में भी, कि अब जुमे की तैयारी हो गई या रमज़ान का दूसरा अशरा हो गया, क्या इसके ज़ौक़ शौक़ से हैं जो इसके लिए हमें हक अदा करना चाहिए यंगस्टर्स को खास तौर पे, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इसकी? अच्छा, अगर यंगस्टर्स की बात की जा रही है तो यहाँ पे दो तरफा इस वक्त जो है वो माहौल हुआ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। एक जनरेशन ऐसी है जो कि बिल्कुल ही आज़ाद हो गई है, जिन्हें इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जुमा आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन है हमारी इस्लामिक सेलिब्रेशन, तो उन्हें चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट इस तरह का हो गया है कि वो पार्टीज कर ली, अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर ली, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि जुमा आ रहा है, तो जुमा भी एक बहुत खास दिन है हमारे लिए, ईद का दिन है। जैसे उलमा कराम ने कहा कि वो एक ईद का दिन होता है, हमें उसको सेलिब्रेट करना है, हमें नहाना है, हमें उस दिन गुस्ल करना है, और जो भी तैयारी ईद के लिए हम करते हैं तो हमें वो चीज़ करनी है, उस चीज़ की उनको अवेयरनेस है नहीं। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ का भी है कि अवेयरनेस नहीं है उनको, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता या वो ढूंढ नहीं रहे होते। अच्छा, एक और ग्रुप है जो कि इस तरफ भी राग़िब हो रहा है। लोग, बहुत सारे स्टूडेंट, मेरा क्योंकि स्टूडेंट से वास्ता पड़ता है, हम लोग की एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास खुद आ रहे होते हैं। उनके जो जहन में जो सवालात होते हैं ना, जैसे अगर घर में इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, बहुत जगह ऐसे भी है कि घर से इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा होता, तो वो सवालात लेकर आते हैं कि हम क्या करें, हमें घर से एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। तो दो तरफा है, हम ये नहीं कह सकते कि सब जो है वो बुराई की तरफ है, ये यंगस्टर फॉलो नहीं कर रहा है इस्लाम को। तो एक ज्यादा रेशियो किसका है आपको लगता है? ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं या ज्यादातर लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं? ज्यादातर अगर मैं कहूँ कि हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को देखा जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत ही ऐसा एनवायरनमेंट है कि आपको वहाँ पे इस्लाम के हवाले से इतनी ज्यादा वर्किंग नहीं मिलती है। बहुत ही छोटे लेवल पे काम हो रहा होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स बना लिए, एक स्टडी सर्किल कर लिया, डिस्कशन सर्किल कहीं कर लिया, कोई सेशन कंडक्ट कर लिया, तो उस हद तक होती है। लेकिन जो एक्टिविटीज जैसे बसंत मना ली, कोई फेस्टिवल कर लिया, तो यूनिवर्सिटी उनको सपोर्ट कर रही होती है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है जितना कि वो बाकी इन सारी एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रही है। तो ये हमारी इंतजामिया का भी इसमें थोड़ा सा ठीक है। इससे हम बात करते हैं आगे। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं कोच मोहम्मद सरफराज के मंदिर से बात कर रहा हूँ। मैंने से एक बात पूछना है, तो उस बाकी सारी कॉन्फ्रेंस हम भी उसमें मिल जाएगा कि रोजा का फर्ज है, ये तकरीबन हर बंदा करता है। हमारे बुजुर्ग जो थे वो पाकिस्तान का कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई बात समझ नहीं आ रही आपकी। आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही, आवाज आ रही है जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। हेलो, आप दोबारा कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी, ये इनकी बात को थोड़ा सा फॉरवर्ड करना चाहूँगा कि मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लेक्चर्स के लिए या वो लोग कोई सेशन कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए जाता हूँ, तो मैं रियली आई वाज शॉक्ड। अच्छा, जब हमारा 40 मिनट का जो कभी 60-70 मिनट का भी हो जाता है, जब लेक्चर खत्म होता है, जब हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन आता है
میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آئی ایم اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ دا پرائیویٹ یونیورسٹیز. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بچی کہ جی وہاں اسلامک ایکٹیویٹیز کو بالکل پروموٹ نہیں کیا جاتا, ناٹ ایون پروموٹ, بلکہ باقاعدہ بائی فورس اس کو روکا جاتا ہے. اگر کوئی گروپ مثال کے طور پر کسی نے واٹس ایپ گروپ بنا لیا ہے کہ جی ہاں جی آپ سب ہم اس میں ایڈ ہو گئے, اچھا جی آج ہم فضیلت رمضان کو بیان کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایسے بچے یا بچیاں جن کے ذہنوں میں خناس سے زیادہ سمایا ہوا ہوتا ہے, وہ جا کر کے مینجمنٹ کو باقاعدہ اطلاع کرتے ہیں کہ جی وہ ریڈیکلزم آ رہا ہے, فنڈامنٹلزم آ رہا ہے, وہ جی داعش آ رہی ہے, فلانا آ رہا ہے, اس گروپ لا کر کے ہمارے جو ہے نا انوائرمنٹ کو خراب کرنا چاہتے ہیں. بجائے اس کے کہ مینجمنٹ جو صحیح طریقہ ہے اس میں بلائے, بٹھا کر کے بات کرے کہ بھائی آپ کے بارے میں اتنا کمپلین آئی ہے, آپ پلیز اس کی اپنے جسٹیفیکیشن دیں. اس میں میں خیر ایک چیز سے مجھے لگتا ہے کمپلیٹ جلدی سے جب ہم کرتے ہیں نا, یہ جب میں کوشچن سنتا ہوں مجھے پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں ان کو کیسے سیٹسفائی کروں, کیونکہ وہ 40 منٹ یا 20 منٹ کے جوابات کے اندر مجھ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. وہ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ لوگ اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک کوئی بوجھ سمجھتے ہیں, کوئی اپنے اوپر کوئی بہت زیادہ تھوپا ہوا کوئی چیز سمجھتے ہیں. تو اس میں کس کا قصور ہے؟ والدین. وہ بات بالکل صحیح کہہ رہی بچی کہ گھروں سے انوائرمنٹ نہیں مل رہا, اویئرنیس نہیں ہو رہی, پریکٹس نہیں ہے اسلام کی. دیٹس وائی اسلام ایک ہیبتناک خوفناک سی چیز بن کر کے ہمارے سامنے آتی ہے, ہمیں نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے نہیں جی اللہ نے تو آگ میں جلا دینا, چلو جی جلنا ہے تو جلنا صحیح. اللہ کی رحمت کو پہلو یہ بھی ہے, میں یونیورسٹیز کے لیے کہنا چاہتی ہوں, جو کہ میرا ایسی کسی یونیورسٹی سے تعلق نہیں ہے, لیکن پالیٹکس اور اسلام نہ صرف یونیورسٹیز میں, مذہب اسلام نہیں, مذہب یا پالیٹکس نہ صرف یونیورسٹیز میں, پبلک پلیسز میں اور بہت سی جگہوں پر منع کیا جاتا ہے کہ آپ ڈسکس نہیں کریں گے, کیونکہ ہماری قوم ایسی ہے کہ ہم میں برداشت نہیں ہے, ہم میں ٹالرنس نہیں ہے. جب ٹالرنس نہیں ہے تو ہم کہیں بھی جا کے کوئی کسی بھی چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انتشار ہوتا ہے. اگر آپ میرے اور میں آپ کے نظریے کو سمجھ کر اور ایکسیپٹ کروں, بے شک نہ سمجھوں نہ مانوں, اور میں اس میں اپنے 4 لوگوں کو بلا کے کسی کو پٹوانے کی سازش نہ کروں, تو میرے خیال میں پھر ہم ایک ٹالرنس کی طرف آئیں گے. ایک بریک آ گیا, آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا, آپ کو کچھ کہنا ہے. اور میں خواتین کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں جن کے چھوٹے بچے ہیں, کیونکہ میں بھی اس سچویشن میں ہوں, تو کبھی کبھی عبادات میں اس طرح سے سکون نہیں مل پاتا, اطمینان نہیں ہو پاتا ہے جتنا آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ اتنی عبادت مجھے کرنی ہے, کیونکہ آپ بچوں کے ساتھ بہت مصروف رہتے ہیں. ایسا کوئی سوال آپ کا بھی ہے تو آپ کال کیجیے اور آپ آج ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آفٹر دی بریک. खबरें और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर. खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे गुप्त हर लम्हा बाखबर. खबर की हो या फिर खेल के मैदान से. सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सख्त मुकाबले और दुनिया भर के टूर. इससे वक्त है खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर. खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद. दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी. पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत. फेसबुक पूरी करती है खबरें जो मोबाइल जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है, उसे एक क्लिक की खबरें हर वक्त बाखबर.
वेलकम बैक। और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हम ब्रेक में भी करते रहे और उसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप पहले मुनीबा कुछ कहना चाहती थी, वो बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रही थी कि आपने एक पॉइंट रेज किया कि टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस इसी वजह से नहीं क्योंकि हमें असल जो है पता ही नहीं अपने इस्लाम की। इस्लाम हमें टॉलरेंस समझाता है। जब हम इन चीजों को ज़ेर बहस लाएंगे, यूनिवर्सिटीज में इन चीजों की अवेयरनेस दी नहीं जाएगी तो कहाँ से टॉलरेंस। अच्छा, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी से पहले ना, एक तो वालिदैन की हमने बात की, घर का माहौल भी ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि उसमें आपका लिबास ही ऐसा हो, उसमें आपकी और भी बहुत सी चीजें हैं। आप गुफ्तगू करते हैं, आप बच्चों को बताते हैं, फिर आप नमाज पढ़ रहे हैं या आप और चीजें कर रहे हैं, तो आपके बच्चे को देखते हैं कि आप लोगों की मदद करते हैं या आप नमाज पढ़ते हैं या आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब भी आप कोई काम करते हैं आप बच्चों से कहते हैं कि हमें अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो उधर से भी वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं कि हाँ अल्लाह के लिए करना है, या सब हमें अल्लाह दे रहा है, या आपने ये जो खाया इसे एंजॉय किया, इसको अल्लाह ने आपको दिया तो आप शुक्र करें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्यारी प्यारी बच्चों के साथ कर रहे होते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि आपका खास कोई हुलिया हो या आप किसी खास मोड में हो। तो ये वालिदैन का है और फिर स्कूल्स का भी है, जहाँ कैम्ब्रिज सिस्टम्स में अंग्रेजी पे बहुत जोर दिया जाता है, वहाँ बहुत सारी चीजों पे और नहीं दिया जाता। खैर, मैं मदर्स के बारे में आज बात करना चाहती हूँ और दोनों से मैं बड़ी अच्छी बात करी थी, लेकिन एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फिलहाल बात कर रहा हूँ। हाँ जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? इस दुनिया की फजीलत के बारे में जरा बात करनी है हमारे इस्लाम से। थोड़ा सा ऊंचा बोलना है आपने, आवाज नहीं समझ आ रही। आप जुम्मे खेल के हवाले से बात करनी है, फजीलत कैसी है कीजिए। आज के जुम्मे आप टीवी से सुन लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। टीवी से आप लोग सुनेंगे तो फिर उसके बाद हमें कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। आप इतनी मेहनत करते हैं, इंतजार करते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन टीवी से अगर आप सुनेंगे तो हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती, कॉल ड्रॉप करनी पड़ जाती है। आप दोनों से मेरा यही सवाल था जो मैंने अपने आप से शुरू किया, लेकिन अपनी तमाम व्यूवर्स के लिए भी मैं पूछना चाहती हूँ। कल भी हमने बच्चों पे सब्जेक्ट किया था तो हमें बड़ी कॉल्स आई, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब। जब आप बच्चों में मसरूफ होते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो आपके दिल में होती हैं, या आप ये सोचते हैं कि कुरान पाक एक दफ़ा तो मैं कंप्लीट करूँ रमज़ान में ना, और कहीं कहीं आपका वो रूटीन उस तरह से नहीं जा रहा होता, रुक सा जाता है, तो महसूस होता है कि जी बच्चों में और चीज़ों में हम शायद अपनी वो जो हमारी ज़रूरत है या हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। आपसे शुरुआत करते हैं, फिर आप भी इस पर कॉमेंट करें। मैं इसमें ये अर्ज करूँगा कि हमारे यहाँ ये तस्वुर क्यों है कि जी सिर्फ इबादत, रोज़ा, नमाज, नफिल, सदका, खैरात का ही नाम है। ये हम क्यों भूल जाते हैं कि जो हम बच्चों की जो तरबियत कर रहे होते हैं या हम जो बच्चों की खिदमत कर रहे होते हैं, आप बच्चों के लिए जो काम कर रही हो, उसके जूते, उसके कपड़े, उसके खाना, उसका पीना, उसका डाइट, व्हाटएवर आप जो भी कर रहे हो, तो ये सब इबादत में शामिल हैं। ये आपका सारा वक्त इबादत में है। आप इसको क्यों ये समझती हैं कि हाँ किसी ने मेड को दे दिया बच्चा। देखिए छोटी उम्र में तो वैसे ही बच्चे किसी और को नहीं देना चाहिए। आपको पता, पहले साल से लेकर 3 साल तक बच्चा लेता ही इनटेक करता है। तो जो कुछ माँ दे सकती है, जो कुछ बाप दे सकता है इस 3 साल के पीरियड में, वो इनटेक करके वही खाते से फिर आगे जाकर के वो करेगा। अब आप एक अनपढ़, आप पढ़ी लिखी हैं लेकिन आपकी सोशल एक्टिविटी भी आपको इतना फुर्सत नहीं दे रही है, तो आप एक अनपढ़ मेड को, लिटरेट को दे देती हैं, तो बच्चे ने तो वही खसलतें ले ली ना उसके अंदर। तो इट मीन्स कि जो इसीलिए इस्लाम ने इन चीजों को इबादत करार दिया। तो ये ज़हन में ना लाएंगे जी मैं वो इबादत नहीं कर पा रही, आपको उसी इबादत का सवाब मिल रहा है। ये मतलब दुआ आपसे ना सुनेंगे, लेकिन मैं आपसे यही बात आप कंप्लीट भी कर दीजिए करूँगी कि जैसे इन्होंने कहा कि इबादत आप कर रही हैं, तो इसी तरीके से रिज़्क़ हलाल जो कमाना है वो इबादत है। तो उसके लिए कोई मखसूस नहीं है कि वो जेंट्स हों या लेडीज़ हों। तो अगर हम अपनी उम्माहात को देखते हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, तो आप देखें कि वो तिजारत की उमूर भी सर अंजाम देती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत भी करती थी, अपने बच्चों को भी देखती थी। इसी तरीके से अगर हम उनको फॉलो अप करें और छोटा सा कोई अमल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, यानी हम अपने अखलाक को बेहतर बना लें, अपने अखलाक किरदार को बेहतर बना के, और अपने बच्चों की तरबियत में ये चीज़ शामिल कर लें कि खशियत इलाही यानी कि अल्लाह का खौफ, किसी का दिल नहीं दुखाना है। छोटी छोटी सी भी बातें, बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें देने से बेहतर है कि छोटी चीज़ भी अगर हम अपने बच्चे को दे देते हैं तो ये भी इबादत के अंदर शामिल हो जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमने बहुत ज़्यादा कुछ देना है, पहले तो हमने अपनी इस्लाह करनी है कि हम जितनी भी इस्लाह करें तो वो
زیادہ سے زیادہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے بچے کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نماز پڑھیں گے ہمارے بچے نماز پڑھیں گے, ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہمارے بچوں کے اخلاق اچھے ہوں گے, اگر ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے تو ہمارے بچے بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. تو ہمیں ماں کہے, کسی مفکر کا قول ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اچھی مائیں دو, میں آپ کو اچھی قوم دوں گے. تو ماؤں کو جو ہے بہت زیادہ, جیسے کہتے ہیں نا, آپ کا جیسے شعبہ الگ ہے ہمارا الگ ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی رہ کر ہم اپنی اخلاقی جو کردار ہے اس کو فالو اپ کر کے اچھے جو اعمال ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں بچوں کو سکھا سکتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ ہم بیٹھ کر ان کو درس و تدریس دیں, نہیں, ہم اپنے عمل کردار کے اندر وہ چیز شامل کریں کہ وہ اس کو فالو اپ کر کے وہ اس راہ پہ قدم کریں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ مزمل بات کر رہا ہوں جی مردان سے. جی فرمائیے. مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. ایک بچی تھوڑا سا سنا کیا ہم سنا دیں, اور دوسرا یہ سونے پہ کتنا سونا ہو کہ اس سے وہ زکات فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال تو بڑے عرصے سے آ رہا ہے اور آج مجھے یاد بھی آیا. دبئی سے ہمارے پاس کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں پاکستان میں 12 تولہ سونا ہے, اس کو زکات ہے یا نہیں, اس کے بارے میں لیکن بعد میں بات کریں گے. مجھے تو یاد ہو گیا ان کا 12 تولہ سونا. اور احسن صاحب نے, علامہ صاحب, ایک سوال کیا تھا کہ اعمال کیسے کیے جائیں خاص طور پہ جن سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو, یا جس طرح انہوں نے سوال کیا تھا. مگر اس سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو دعا سے ہم نعت سن لیتے ہیں. احمد و محمود ویرا لکش بستوز محمد احمد و محمود ویرا لکش بستوز ازو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا ازو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا. اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم نادم یافتے توبہ ننو ازغر کے نا جینا نادم یافتے توبہ ننو ازغر کے نا جینا. دو چشمے نرگس نشرا کے مازا قل بسر کانن دو چشمے نرگس نشرا کے مازا قل بسر خانن دو زلف امبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف امبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا زسر سینہ شجامی علم نشرح لک برقا زسر سینہ شجامی علم نشرح لک برقا میرا جش چمی پرسی کے سو
सुबहानल्लज़ी यसरा मेरा जमी पुरसी कि सुबहानल्लज़ी यसरा वसल्लल्लाहु अला नूरिन कज़ू शुद नूर पैदा ज़मी अज़हू बेहू साकिन फलक दर इश्क़ शैदा। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बहुत प्यारी। और आपको हर चीज समझ आ रही थी जो आप पढ़ रही थी, है ना? क्योंकि मुझे तो आपको देख के अंदाजा हो रहा था अक्सर चीजों का, या थोड़े बहुत अल्फाज पता है, लेकिन आपको सब पता था। हाँ, आका की सिफात बयान की है इसमें। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत आपको देख कर समझ आ रही थी। तो अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल मंजूर फरमाए। हमारे साथ कॉलर हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी ही आपको याद किया था। 12 तोला सोना जो आपका पाकिस्तान में है आज, इसका जवाब लेकर ही दम लेंगे हम। अल्लाह आपको जिंदा खुश रखे। तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं थोड़ा बाहर हूँ, रूम में नहीं हो, कमरे में नहीं हो, लेकिन ये थोड़ा मौलवी साहब से मालूमात करो ना इसका क्या क्या। हाँ हाँ बिल्कुल। 12 तोला पाकिस्तान में रखा गया है, ये भी बता देते। लेकिन 12 तोला सोना जो है ना, ये पाकिस्तान में हमारा घर में है। इधर से हम लिए 15-16 साल पहला। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी पूछ लेते हैं उसके ज़कात के बारे में। जो वो किसी के इस्तेमाल में नहीं है ना, इसलिए क्योंकि हमारा 2 बच्चे छोटा है, वो बड़ा हो जाएगा। 1 साल का 1 साल का, और भी छोटा है ना। अच्छा ठीक है, समझ आ गई आपकी बात। ऑन एयर आप सुनिएगा टीवी से, ठीक है? थैंक यू सो मच। पहले एक सवाल अल्लामा साहब एहसन साहब ने किया था अमाल के हवाले से, उसको बता दीजिए, फिर इनका जवाब भी ले लेते हैं। मुबारक के कई अमाल में से एक दो मैं आपको बताता हूँ कि एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअत मर्रतिन फी यौमिल जुमा फज़ल्लाहु मिअत हाज, कि जो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जुमे के दिन 100 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी करवाएगा। सबीना हवाइजुल आखिरा, उनमें से 70 जो हाजतें हैं वो आखिरत की हाजतें हैं, और 30 हवाइजुल दुनिया, और 30 हाजात जो है वो इस दुनिया की हाजात हैं। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर अल्लाह तबारक व तआला उस दुरूद को मलिकन, फिर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको एक फरिश्ते को सुपुर्द कर देता है। वो उसको मेरी कब्र में ऐसे, कब्र शरीफ में ऐसे दाखिल करता है जैसे तुम्हारी तरफ किसी को तोहफा भेजा जाता है। तो और उसके बाद जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस दुरूद पाक पढ़ने वाले का नाम, उसका पूरा शजरा जो है वो बता दिया जाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम उस बिल्कुल की सहीफ़तुल बैदा, फिर मैं उसको जो है वो एक जो सहीफ़ा बैदा है, सफ़ेद रजिस्टर है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसमें उसको लिख लेते हैं। तो ये एक कितनी ज्यादा, ये समझिए कि फजीलत की बात है। 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, ये ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट और 100 हाजतें हम हाजात के लिए इधर उधर। बिल्कुल सही बात है आपकी। करीम अलैहिस्सलाम का वजीफा देखिए, गुलाम बाबे का वजीफा, गुलाम बाबे का वजीफा, उसकी बजाय ऑथेंटिक वजीफा जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है उसकी तरफ हमारी तवज्जो हो जाती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, इसमें उस अल्लाह तबारक व तआला उसको नूर अता फरमाता है। कितना नूर अता फरमाता है, इसमें 3 रिवायात हैं। एक में ये है कि उसके और मा बैन समा, अल्लाह तबारक व तआला इतना नूर अता फरमाता है कि पढ़ने वाले से लेकर आसमानों तक जो है वो नूर ही नूर उसके लिए अल्लाह अता फरमाता है। और एक रिवायत में ये तो उससे लेकर हरम काबा तक अल्लाह तबारक व तआला नूर का सिलसिला पैदा फरमा देता है। और एक हदीस मुबारक में ये कि उस जुमे से लेकर अगले जुमे तक अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ये नूर का सिलसिला जारी कर देता है। इसी तरह सूरह दुखान के लिए भी अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने जो है वो फजीलत बताई है कि जुमे के दिन उसको तिलावत किया जाए, सूरह बकरा की तिलावत की जाए। कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस
घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है वहाँ से शयातीन जो है वो भागते हैं। अच्छा, इसमें एक कॉलर भी है, मैं जल्दी से आप बता दीजिए क्योंकि सूरह बकरा जाहिर है वो 2.5 पारे की है और लोग मैंने कुछ सुना था तो मैं चाहती हूँ उसे कंफर्म भी करें कि आखिरी चंद आयात को कहा जाता है कि अगर आपने रोज विर्द करना है तो आखिरी 5-6 आयात के बारे में कहा जाता है, क्या ये सही है या नहीं? आखिरी आयात जो सूरह बकरा की उनकी भी फजीलत है, उनको भी पढ़ा जाए, वो भी यानी मतलब रोजमर्रा के लिए जो लोग कहते हैं कि रोज अगर आपने पढ़ी है, ये चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सूरह बकरा जो हदीस मुबारक में आया कि जिस घर में पढ़ी जाती है उसमें में बहलाएं बनती हैं, ये नहीं कि वो एक दिन में पूरी ही पढ़ लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरी ही पढ़ना जरूरी है, आप जितना टाइम मिलता है उतनी पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला और उसकी बरकत से जो है वो आफात व बलियात को घर से दूर फरमाएगा। ठीक है, अलैहिस्सलाम का एक बताया। हमारे साथ आयशा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शुक्रिया। और आज जुम्मे की बात से बात हो रही है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जुम्मा तो तमाम दिनों का सरदार है और बहुत ही अफजल दिन है जुम्मा जो है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कॉल किया और इनपुट दिया। अच्छा, वो 12 तोले सोने का जवाब दे दीजिए, वो पाकिस्तान में किसी के इस्तेमाल में नहीं है, उसकी ज़कात है या नहीं? इनको कहें कि सबसे आसान ये है कि बजाय इसके कि हमसे पूछें, बहुत आसान है, आजकल हर ज्वेलर को पता होता है कि ज़कात की निसाब क्या है। इनको कहें अपने घर वालों से कहें कि किसी ज्वेलर शॉप पे चले जाएं और याद रहे कीमत खरीद पर नहीं, कीमत फरोख्त के ऊपर जो है ये ज़कात का निसाब जो है ना, मतलब पहली बात तो ये है कि ज़कात होगी 7.5 तोले पे ज़कात है ना, वो 12 तोले है। और ये जो बात होती है ना कि इस्तेमाल में नहीं है, आपके घर में रखा हुआ है तो होगी बस। देन व्हाट, नहीं इस्तेमाल में तो कोई बात नहीं। तो मिल्क में है, मिल्क में है, वो देगा। होता ये है, असल में मामला ये है कि लोगों में अब ये रुझान आ रहा है कि वो जो माँ है उसके पास जेवर है, अब वो खुद जरूरत के वक्त तो पहन लेती, 24 घंटे पहन नहीं सकती। अब ज़कात देने का मामला आता है तो वो अपने आप को मुतमईन करने तक ये कहती है ये मैंने अपनी बेटी के लिए संभाल रखा है, बस इसके नसीब का है, इसको मैं दूंगी। अब वो उसकी मिल्क में भी नहीं है, उसको पहनने के लिए भी नहीं दे रही, बस उसके लिए रखा है कि ये बड़ी हो जाए। अब ज़कात से बचाने के लिए, अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए ये एक गलत किस्म का हीला और ये बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो मिल्कियत उसी के है, उसको ज़कात देना जरूरी। और ज़कात का अगर आप निकालेंगे ना तो वो कैलकुलेशन ऐसी कोई बहुत बड़ी नहीं होती कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। हाँ, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं होता, आपको लगेगा कि इतनी आसान। ने फरमाया ठीक है कि कुछ की करीब में माल बर्बाद नहीं होता सिवाय इसके कि ज़कात के रोके जाने पर। ठीक है, अब हम परेशान होते हैं कि हमारा माल चोरी हो जाए या माली क्राइसिस आ जाए, तो उससे बचने के लिए अगर हम ज़कात देते हैं तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं है। ठीक है, हमारा वक्त यहाँ पर खत्म हो गया। जाते जाते कुछ कहना चाहती हैं एक लाइन तो आप भी जल्दी से लेकिन बोल दीजिए क्योंकि एक ब्रेक लेना है मुझे। बस यही कहूँगी कि रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से हमें इस वक्त ये बहुत वैसी घड़ियाँ हैं जिसमें हमने अगर इस माह में अपनी बख्शिश नहीं कराई तो फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है बार बार मौका नहीं देता, पता नहीं हमें अगले साल नसीब हो या ना हो। यानी हर घड़ी को अपना आखिरी दिन समझ के ऐसी इबादत करें। तो जैसे कहते हैं ना किसी गर्दन पे छुरी होती है और वो फिर दुआ करता है तो अल्लाह की बारगाह में कबूल मंजूर होती है, इस तरह से अल्लाह की इबादत करें, बिल्कुल इंशाल्लाह कबूल मंजूर होगी इंशाल्लाह। बस इतना कहना चाहूंगी कि रमजान का महीना एक बहुत ही खूबसूरत महीना होता है, एक तरह से सेलिब्रेशन हो रही होती है, हर चीज डिफरेंट हो रही होती है और ये प्रैक्टिस हमारी हो रही थी आने वाले साल में 11 महीनों की प्रैक्टिस है, तो इसको इसी तरह से लेना चाहिए हमें स्टूडेंट्स को भी, और ताकि हम आगे अपने 11 महीनों को जो है वो संवार सके इस एक महीने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ आवरी का, आपकी इस तमाम नसीहतों का और इस तमाम बयान का और ये अच्छी बातें जो आप लोगों ने की, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार से। ब्रेक के बाद जब हम आते हैं तो हमारा सब्जेक्ट है अब गाड़ी सबके लिए। एक चीज आप याद रखिए, यहाँ गाड़ियां नहीं आने वाली, ना हम आपको तोहफे में देने वाले हैं, लेकिन आपको गाड़ी कैसे मिल सकती है, कितना आसान हो गया है, अब गाड़ी सबके लिए कैसे मुमकिन है, इस पे हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर, खबर उनकी हो या फिर खेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस
फिर सख्त मुकाबले, दुनिया भर के टूर। इसमें वक्त है कहाँ, खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के पास। दिन भर शूटिंग में मशरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें ग्रुप की मोबाइल ऐप, जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है। सिर्फ एक क्लिक की पूरी करें। खबरें की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, हर वक्त खबरें हर वक्त बाखबर। कैसे अंकल, आपका घर रेंट के लिए खाली है? अब क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। इसका रेंट वगैरह क्या है? 25,000 रेंट है और 2 माह की स्टोरेज। इसके अलावा कोई शराइत? पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होगी आपकी। ये साल का एडवांस रखें। पुलिस के चक्करों में कौन पड़ता है? ठहरिए, ये देखकर खुश मत हो कि कितना पैसा आया है। सोचें, ये पैसा कौन कहां से लाया है। दहशतगर्द शहरी इलाके में कार्रवाई करते हुए किराए के मकान ही इस्तेमाल करते हैं। पुरअमन पाकिस्तान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें, क्योंकि हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। खुदाए बुजुर्गों बरकत पर यकीन रखने वालों के लिए रब्बुल आलमीन की जानिब से रहमतों और बरकतों का खास तोहफा। इस माह मुकद्दस में ईमान वालों के लिए रहमत है और मग़फ़िरत, और जहन्नुम की आग से निजात का पैगाम भी। माह मुबारक के दौरान शान रबूबियत, मेराज मोमिन और इस्लामी इक़दार का गुलदस्ता लिए पुरनूर महफिल सजा हम ला रहे हैं खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन बज़्म रमजान। बज़्म रमजान में आपको मिलेंगी तजल्लियात और फ़ज़ाइल रमजान, दिल को छू लेने वाली आवाज में तिलावत कलाम पाक, हमदे बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान से मुतल्लिक मजहबी, तिब्बी मसाइल और सकाफती इक़दार पर बात करने के लिए मुल्क की नामवर दीनी और समाजी शख्सियात को दावत दी जाएगी। बात होगी दुनिया भर में रमजान की शानदार और दिलचस्प रिवायात। बात होगी मजेदार इफ्तार बनाने की तरकीबों की लाइव किचन में। बज़्म रमजान खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रोजाना शाम 5:30 से रात 8 बजे तक, सिर्फ PTV न्यूज पर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अब तक की हेडलाइंस के साथ मैं हूं उस्मा चौहतरी।
برطانیہ میں عام انتخابات کے بعد نتائج کا سلسلہ جاری. حکمران کنزرویٹو پارٹی کو اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی پر واضح برتری حاصل. کنزرویٹو پارٹی نے 305 جبکہ لیبر پارٹی نے 257 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی. معلق پارلیمنٹ وجود میں آنے کا امکان. کوئی بھی پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی. انتخابی جائزے. برطانوی انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی کی سربراہ اور وزیر اعظم تھریسا مے نے کامیابی حاصل کر لی. اپوزیشن لیڈر اور لیبر پارٹی کے سربراہ جیرمی کوربن بھی اپنی سیٹ دوبارہ جیت گئے. انتخابات میں پاکستانی معیار ڈاکٹر روزینہ خان, محمد خان, افضل خان, شبانہ محمود اور یاسمین قریشی بھی کامیاب. شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس آستانہ میں آج دوسرے دن بھی جاری رہے گا. وزیر اعظم محمد نواز شریف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. پاکستان ایس سی او کا مکمل رکن بن جائے گا. آستانہ میں وزیر اعظم محمد نواز شریف کی ازبکستان کے صدر شوکت مرزا سے ملاقات. وزیر اعظم کی 2 طرفہ تجارت, سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اصلاحات کی تجویز. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارتی تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع ہیں. وزیر اعظم محمد نواز شریف کی آستانہ میں قازقستان کے صدر نور سلطان نظربایوف سے ملاقات. ایس سی او سربراہ اجلاس کی میزبانی پر مبارکباد. قازقستان کے ساتھ توانائی, مواصلات اور انسانی وسائل کی ترقی کے شعبوں میں مضبوط تعاون چاہتے ہیں. وزیر اعظم مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں داعش کا بلوچستان میں انفراسٹرکچر قائم کرنے سے پہلے تباہ کر دیا گیا. کالعدم تنظیمیں داعش کو بلوچستان میں قدم جمانے کے لیے سہولت فراہم کر رہی تھی. آپریشن میں 2 خودکش حملہ آوروں سمیت 12 دہشت گرد ہلاک. ISPR آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تربیلا میں SSG ٹریننگ ایریا کا دورہ. نائجیرین اسپیشل فورسز کی تربیت کا مشاہدہ. دوست ممالک کو انسداد دہشت گردی کی تربیت فراہم کر رہے ہیں آرمی چیف. امریکی انتخابات میں روسی مداخلت میں کوئی شبہ نہیں. تفتیش بند کرنے کا حکم صدر ٹرمپ نے دیا. سابق FBI چیف جیمز کومی کا انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے بیان. صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں جنگجوؤں کا فوجی اڈے پر حملہ. 61 فوجیوں سمیت 70 افراد ہلاک, درجنوں زخمی. شدت پسند تنظیم الشباب نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں انسان نما روبوٹ صوفیہ متعارف. روبوٹ ہو بہو انسانوں کی طرح دل فریب, مسکراہٹ, پتلی ناک, خوبصورت آنکھوں کے علاوہ چہرے کے ساتھ مختلف تاثرات دکھانے اور گفتگو کرنے کی مہارت رکھتا ہے. صوفیہ اب تک نہ صرف کانسرٹ بلکہ ماڈلنگ میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر چکا ہے. لاڑکانہ میں نہر سے نایاب نسل کی ڈالفن برآمد. ڈالفن کو مقامی لوگوں نے وائلڈ لائف کے عملے کے حوالے کر دیا. وائلڈ لائف کا عملہ اس ڈالفن کو آج دریائے سندھ میں چھوڑ دے گا. ICC چیمپئنز ٹرافی آج نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں کارڈف میں مد مقابل ہوں گی. میچ دن 2:30 پر PTV اسپورٹس دکھائے گا براہ راست. اور کل کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے بھارت کو بآسانی 7 وکٹوں سے شکست دے دی. لنکن سے بھارت کا دیا ہوا 322 رنز کا ہدف 8 گیندیں قبل ہی پورا کر لیا. گروپ B دلچسپ مرحلے میں داخل, تمام ٹیموں کے 2-2 پوائنٹ. اب تک کی ہیڈ لائنز آپ نے جانی. مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے PTV نیوز. روزنامہ خبریں اور چینل 5 اب آپ کے اسمارٹ فون پر. خبریں اور چینل 5 کی موبائل اپلیکیشن سے رکھے خود کو ہر لمحہ باخبر. خبر ملکی ہو یا غیر ملکی, شامل کھیل کے میدان سے. سارا دن پریکٹس
से सब मुकाबले और दुनिया भर के टूर हैं। इसमें वक्त है कहाँ? खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उसके साथ जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज रोजनामा खबरें और चैनल 5 के पास। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें ग्रुप की मोबाइल ऐप जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है। सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर खबरें की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके हर वक्त खबरें हर वक्त वेलकम बैक। और हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं अब गाड़ी सबके लिए। एक दिन मेरे बेटे ने, जिसकी उम्र 10 साल है, उसने मुझे एक दिन आके कहा कि इंडिया में टाटा मोटर्स है और उन्होंने टाटा नैनो बनाई है। अच्छा, उस वक्त उसने मुझे वो बातें बताई कि जी उनका पर्सपेक्टिव ये था कि गाड़ी बनाने में, छोटी सी गाड़ी है जो हर जगह पर चली भी जाएगी और बहुत इजीली एक्सेसिबल है। आज क्योंकि हम गाड़ियों के हवाले से प्रोग्राम कर रहे थे और मैंने उसे सर्च किया तो टाटा नैनो जो है वो इंडियन रुपीज 1 लाख में मिल जाती है। इतनी सस्ती गाड़ी बनाई है कि 1 लाख में लोगों को मिल रही है। लोग अब गाड़ी का जो उनका एक इंटरेस्ट था या वो जो एक फीलिंग होती है कि मेरे पास गाड़ी हो, वो उस गाड़ी को खरीद के पूरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो लोगों की बहबूद के लिए भी काम कर रही हैं, जो इस नजरिए से भी काम कर रही हैं कि हमारे यहाँ ये एक वो ऑप्शन है जिसे मजीद सस्ता भी होना चाहिए, मजीद अच्छा भी होना चाहिए। इसके बारे में हम और भी चीजें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से सुनते रहते हैं। मेरे ख्याल में जितनी भी गुड न्यूज है या जब हम ये कहते हैं कि अब गाड़ी सबके लिए, क्योंकि अब हर कोई ये बात करता है कि गाड़ी लेना अब मुश्किल नहीं रहा है पाकिस्तान में भी, तो क्या ऐसा ही है? हम इस पर बात करेंगे। और क्या ऐसा ही आपको लगता है? आपने कॉल करनी है और आपने बताना है कि आप इस बात से, इस स्टेटमेंट के साथ जाते हैं या नहीं जाते। मेहमानों से आप सवाल भी कर सकते हैं। हमारे साथ सबसे पहले जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, एम ए जब्बार साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव कायम ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के। इसके अलावा FPCCI से भी इनका ताल्लुक रहा और भी बहुत सारे इनके डेजिग्नेशन से, बट फॉर टुडेज प्रोग्राम मैंने ये खास डेजिग्नेशन चूज किया था। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एंड वी हैव सनोबर अहमद साहिबा। इनका तारुफ तो वैसे ये है कि पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी ऐसी हैं जिन्होंने मैथ्स की किताब खुद लिखी है और उनको सपोर्ट मिला तो ये अब मंजर आम पर भी आ गई है। स्टूडेंट्स के साथ बहुत इनका इंटरेक्शन रहता है, लोगों के साथ बहुत इंटरेक्शन रहता है। ऑब्वियसली सड़क पर बहुत निकलती हैं, तो हमने सोचा आज इनसे भी जरा इस हवाले से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सवालात होंगे। मुनीबा हमारे साथ मौजूद हैं जो आज सुबह में भी फर्स्ट सेगमेंट में भी हमारे यूथ को रिप्रेजेंट कर रही थी और अभी भी हम इसी हवाले से आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जब्बार साहब, पहले तो ओवरऑल ये जो आज हमने कहा है, जो हमारी टैगलाइन है इस फोरम से, अब गाड़ी सबके लिए, ये सही बात है? देखिए, पाकिस्तान मेरे स्टेटिस्टिकली हम जायजा लें कि पाकिस्तान 40 ममालिक में एक मुल्क है जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं। पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि दुनिया में 10 टॉप मैन्युफैक्चरर जिनके ब्रांड नेम्स होते हैं, तो आपके प्रोग्राम में मेरा ख्याल है कि मैं नहीं बात करूँगा, मगर 4 जो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं दुनिया में वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान में जो है वो वैल्यू एडिशन के हवाले से 50% से ज़्यादा एक लोकल एम्प्लॉयमेंट और एक लोकल स्किल के हवाले से वैल्यू एड होता है, जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमी में रिफ्लेक्शन की स्ट्रेंथ किस तरह नजर आती है कि उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, उससे जो है दूसरे किस्म के फायदे भी होते हैं। मगर उसके बाद जो है वो टैक्सेस के मद में पाकिस्तान में हर गाड़ी के ऊपर 37% जो है 37%। ओह माय गॉड, यानी अगर 1 लाख की गाड़ी हो तो 37,000 उसके ऊपर टैक्स है, तो 1 सेंटिस की आपको पड़ गई। तो इसका मतलब ये होगा कि एक नेशनल एक्सचेकर में भी गाड़ियाँ जो है
बन रही हैं और बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन को लेकर बैठी हुई हैं और पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी में ये 300% अपने उस हिस्से जो GDP में है 300% ऑफ द शेयर इन GDP टैक्सेस भरती हैं। एक डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है और एक वो सेक्टर है जिसके पीछे मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत की हम देख रहे हैं कि पॉलिसी सपोर्ट स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अगर आपने एक बड़ा बज़वर्ड सुना होगा ऑटो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, जी, उसमें जो है अब बहुत से ममालिक इन 4 टॉप मैन्युफैक्चर के अलावा भी दिलचस्पी दे रहे हैं। पहले ये जो है इनका चाइनीज इन्वेस्टमेंट का भी मैंने बहुत सुना है कि उनके प्लांट्स यहाँ लग रहे हैं और बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। जो गाड़ियाँ इम्पोर्टेड होती थी और उस पर मजीद और टैक्सेस होते थे तो शायद लोकल प्रोडक्शन होगी तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। चाइनीज ने इंटरेस्ट भी दिखाया है, यानी स्वीडन जैसा मुल्क जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। जो भी ममालिक हैं जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं उनका इंटरेस्ट तब नजर आता है जब वो मार्केट में वसत पैदा हो देख सकते हैं। 6,000 से लेकर 7,000 गाड़ियाँ जो है लॉन्ग व्हीकल्स जिसको कहना चाहिए वो जब चाइना से लेकर ग्वादर तक जाएंगी तो उसके साथ एक एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की भी जरूरत होगी। आप देखें कि 6,000 बड़ी लॉन्ग ट्रक वहाँ से दिल्ली की बात हो रही है। उसके अलावा $37 बिलियन के पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स उसका एक हिस्सा है। पाकिस्तान एक इंटरनेशनल ट्रीटी जिसको हम कहते हैं TRA कन्वेंशन, अपने मुल्क से भी गाड़ियाँ दूसरे मुल्क जा सकती हैं, दूसरे मुल्क से भी आ सकती हैं। उसका एक हिस्सा बनने के बाद इस एक्सपेंशन में मजीद जो है शिद्दत पैदा हो गई है। तो इन ओवरऑल मैं ये देखता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और गाड़ियों के हवाले से पाकिस्तान में जैसे जैसे एक अंग्रेजी में या टेक्निकल वर्ड होता है, कोशिश करूँगा उर्दू में समझाने की, इकोनॉमी ऑफ स्केल। अगर आप 100 चीजें बनाती हैं तो उस 100 चीजें बनाने में जो भी आपके अखराजात आते हैं 200 पे करें तो वो कम हो जाएंगे, कम होती है। तो आपने जो मैनू की बात की, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब गाड़ियाँ जो है उनकी तादाद बढ़ेगी और उसकी डिमांड जो है क्रिएट करेगी गवर्नमेंट। अब छोटी सी एक मिसाल दूँ कि जिससे पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट जो है बेरोजगार स्कीम के हवाले से आपको देखे एक ऑरेंज कैब का एक प्रोग्राम 1 लाख गाड़ियाँ, तो आप देखें जो आपने कहा कि गाड़ी सबके लिए 1 लाख गाड़ियाँ उन लोगों के हवाले होंगी जिनके जराए माश में जो है वो कमजोरी है, जिनको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि आहिस्ते आहिस्ते अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट और उसकी पॉलिसियों का इजरा जो है वो एग्जीक्यूशन में भी कामयाबी के साथ चलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 लाख गाड़ियाँ जो हैं उसकी कैपेसिटी है एब्जॉर्ब होने की, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है उसके आगे फाइनेंसेस के रहने की। अच्छा, एक बात छोटी सी बताइए, फिर कॉलर है कि क्या हमारे यहाँ गाड़ियों की कीमतें कम होंगी? आपको लगता है नियर फ्यूचर में? देखें, गाड़ियों की कीमतें कम होने में 2 चीजों को हम जरूर डिस्कस करें। एक तो यह है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल, जैसे इससे गाड़ियों की तादाद बढ़ेगी, गाड़ियों की कीमतों में कमी होगी और जैसे इससे मार्केट में एक्सपेंशन होगी तो छोटी गाड़ियाँ, जी आपने जिस हवाले से बात की, आहिस्ते आहिस्ते आपने सुना होगा हाइब्रिड गाड़ियाँ, जी बिल्कुल, व्हीकल्स, इनकी कम्बिनेशन फ्यूल के साथ जो है न सिर्फ ये इकोनॉमिकल हो सकती हैं और सबके लिए हमारे कंसेप्ट में ये सबसे ज्यादा वाइबल होंगी। यूनिट प्राइस जब कम होगी तो मेरे अपने ख्याल में फ्यूल कास्ट कम होगी। एक होम टेक जो इनकम है उसको किसी तरीके से एक साथ में अदा करके ठीक है गाड़ी भी खरीदी जा सकेगी। ओके, यासिर साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। गाड़ी जो बाहर से इम्पोर्ट होती है 1 लाख रुपए का भी नहीं होता है, लेकिन इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस वगैरह लगा के ये 5 लाख 6 लाख तक बढ़ा देती है। जब इम्पोर्टेड गाड़ी होती है तो उसमें टैक्सेस वगैरह इतने लगते हैं तो 5-6 लाख रुपए उस पर बढ़ जाते हैं। गाड़ियों के ऊपर भी टैक्सेस हैं। मैंने आपको बताया कि 37% जो है वो हर यानी 100 रुपए के ऊपर 37% टैक्स। बिल्कुल, आप जो गाड़ी खरीदती हैं उसमें आप भी टैक्स अदा कर रही हैं, कितना 37%। आप तो बहुत बड़ी टैक्स पेयर हैं अगर आप गाड़ी खरीद रही हैं, तो उस गाड़ी में आपको उस गाड़ी के साथ साथ 37% एक किस्म का वो चीज भी मिली है जो आपने भरी है। अच्छा, मुझे एक और चीज बता दीजिए कि जब आप गाड़ी निकलवाते हैं तो उसमें एक विद होल्डिंग टैक्स भी पे करते हैं, उसके बारे में भी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जब आप टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करेंगे तो आपका विद होल्डिंग टैक्स आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं मिलेगा। देखिए, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जिसको कहते हैं कि फिस्कल लॉ,
फिस्कल रिलेटेड मेजर्स, उसके तहत जो है डायरेक्ट टैक्सेशन में जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो जब काट लिया जाता है, और अगर आप फाइलर हैं, ये फाइलर नाम फाइलर जी फाइलर, हाँ झगड़े में नहीं जाऊंगा, हाँ फाइलर हैं, चलिए फॉर इंस्टेंस फाइलर हैं, तो आप उसको बिल्कुल क्लेम बैक कर सकती हैं। आपकी अगर फाइनल लायबिलिटी 100 रुपए है और आपने ये विदहोल्डिंग टैक्सेस भरकर तो 150 बढ़े तो आपको 50 रुपए रिफंड भी निकलता है। दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेशन। मगर अगर आपकी लायबिलिटी 100 है और आपने विदहोल्डिंग टैक्सेस ये सब मिला के 80 रुपए भरे हैं तो फिर आपको सिर्फ 20 रुपए मजीद अदा करने पड़ेंगे। तो ये किस्म का एक टैक्स क्रेडिट हो जाता है जो आपके रिटर्न्स में जो है वो नजर आता है। ये रसीदें लोग संभाल कर रखें अगर अपने तालमे के फाइलिंग के फिर। हाँ, और अब रिटर्न फाइल किया करें, उसके बड़े फायदे हैं। अदरवाइज आपको बहुत सी जगहों पर बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं इसलिए क्योंकि आप फाइलर नहीं है। जी सनोबर, ये जो आपने फाइलरिंग की बात की है तो वो रिफंड हो जाता है बिकॉज आप एक्सपीरियंस है। अच्छा, अगर आप बाकायदा फाइलर हैं तो ना सिर्फ ऑटोमोबाइल्स के ऊपर टेली कम्युनिकेशन या जहाँ कहीं पे भी आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो वो अगर आप डिमांड करते हैं तो वो मिल जाता है। जहाँ तक गाड़ियों का एक्सेस का ताल्लुक है तो एज आई एम ऑल्सो अ ड्राइवर, तो गाड़ियां बेशक आएं लेकिन उसके हिसाब से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि टूटी फूटी सड़कें हैं और बेशुमार गाड़ियां उसके ऊपर। और अब तो कराची में तो हर वक्त और हर जगह ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक का इतना वो है। और सेकेंडली ये कि ड्राइवर्स जो है दे मस्ट बी ट्रेन्ड। ऐसा ना हो कि हर एक के एक्सेस में जब एक चीज आ जाती है तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको बस जब जैसे स्टार्टेड और फिर वो सड़क पे आ जाते हैं और फिर आपको पता है कि बीइंग लेडी लाइक अगर हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो एवरीवन विल क्लेम के खातून है तो गलती करेगी। आप घर में बैठो, आप रोटी पकाओ, किसने तुम्हें कह दिया कि गाड़ी लेके तो ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा सुनने में देखने में आती हैं। तो पहले आप प्रॉपरली ड्राइविंग सीखें, उसके बाद प्लीज आप रोड पे आएँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल। अच्छा, और इसको क्योंकि आप खुद गाड़ी को ऑब्वियसली जब आप वर्किंग लेडी हैं, आप खुद ड्राइव भी करेंगे और सारा कुछ, तो आपको उसकी कॉस्ट के बारे में भी पता चलता है। तो उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप जरूर गाइड कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं गाड़ी लेने का और अच्छी बड़ी और बेहतरीन गाड़ी, सबकी बेहतरीन ही कोशिश होती है, मगर उससे रिलेटेड कॉस्ट क्या है या कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लगती हैं कि लोग कंसर्न उसके हवाले से होते हैं, तो वो हमसे शेयर कीजिए। बट आफ्टर द कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम साहब, क्या हाल है? ठीक है जी जी, अल्लाह का वालेकुम अस्सलाम मैडम साहब, ठीक हो जी? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हेलो, आप टेलीफोन से ही बात कीजिए, टीवी से बात ना कीजिए। मैडम साहब, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब साइकिल आई थी तो सबने यूज की थी तो वो आम हो गई थी। उसके बाद फिर मोटरसाइकिल आया, वो चाइना की जो है चाइना ने दिया है तो वो भी आम हो गए, वो भी अभी जो है सस्ते मिल रहे हैं। तो इसी तरह फिर गाड़ियाँ भी आम हो जाएगी। हमारे जो आप कह रही हैं कि प्लान लग रहा है पाकिस्तान में, तो फिर इंशाल्लाह वो भी सस्ती हो जाएगी, इसी तरह आम हो जाएगी वो भी। ठीक है, तो फिर कुछ ख्याल करने की जरूरत है। अच्छा, तो फिर दूसरा मेरी सवाल है कि पहले जो मैडम आप टीवी से सुन रहे हैं मेरी बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सनोबर। जी, मैं आपने क्या सवाल किया था मुझसे? सॉरी। अरे वाह, भूल गई इतनी जल्दी। मैंने कहा कॉस्ट बताएं कि गाड़ी को मेंटेन करने की। एक्चुअली नुसरत, सबसे बड़ी बात ये कि जब आप गाड़ी रख रहे हैं ना तो उसकी मेंटेनेंस पर आप तवज्जो दें। अगर आप अपनी गाड़ी मेंटेन रखते हैं तो बिलीव मी इट्स कॉस्ट लाइक वेरी चीप। कि अगर आप एक जगह से आपकी मोबिलिटी दूसरी जगह पर है तो विद इन लाइक 50 रुपीज CNG के अंदर आप आना जाना भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आप नॉर्मली कोई जो आजकल अगर आप कहें तो मैं नाम ले लूं, जो आजकल सर्विसेज चल रही हैं उसके अंदर शुरू में तो काफी अच्छे प्रमोशंस के ऊपर आपको अट्रैक्शन दी जाती है, उसके बाद फिर आपको निचोड़ दिया जाता है अच्छी तरीके से। तो अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो इट विल बी डेफिनेटली कन्वीनियंट फॉर यू कि आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं और बहुत कम कॉस्ट के अंदर। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है, याहिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इत्तेफाक से जिस शोबे से मुतालिक आप बात करी वो मेरा ही शोबा है, मेरा भी गाड़ियों की सेल से ताल्लुक है। अरे वाह, किस चीज से ताल्लुक है? आप तो पहले अपने बारे में बता दें थोड़ा सा।
नहीं, मेरा एक्चुअली मैंने ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा भी किया हुआ है और मेरा कुछ गाड़ी की सेल्स का ही ताल्लुक है एक शोरूम के हवाले से। तो मेरा कंसर्न ये है, क्योंकि बार बार बैठे मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया भर में इस वक्त आपको पता है दुनिया भर में सबसे महंगी तरीन रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में गाड़ी की। अच्छा, ठीक है। अब मैं ये मेरा अपना सर्वे बहुत वक्त में, क्योंकि आप इतनी ज्यादा विथ होल्डिंग टैक्सेस इतना, जैसे इन्होंने कहा ऑटोमोबाइल पे बहुत इंडस्ट्री बहुत ज्यादा टैक्सेस है और ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लेकिन इस पर टैक्सेस बहुत ज्यादा है। लेकिन बात अगर हम करते हैं ना, तो 1300 सी गाड़ी है ना, उस पर वो तकरीबन इस पर हमें मार्केट में मिलती है 17 से 18 लाख रुपए की पाकिस्तानी गाड़ी। छोटी से छोटी गाड़ी मेहरान अगर आप लेते हैं, जो बेसिक मॉडल होता है वो 7 लाख रुपए से कम का नहीं है। अब होता ये कि जब आप इम्पोर्टेड गाड़ी मंगा रहे होते हैं, चाहे वो 3-4 साल पुरानी है, वो उससे बहुत बेहतर होती है, उसमें कई चीजें होती हैं और 1000 सीसी 660 सीसी के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तानी गाड़ियों के पास, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियों का जमाना है। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि छोटी गाड़ी पे वो सब्सिडी दें, छोटी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करने की, जिसमें हाइब्रिड गाड़ियां 1500 सीसी तक, उसमें अगर आप चांस देंगे तो आपकी जो इम्पोर्टेड गाड़ियों की मांग कम हो जाएगी। आज इम्पोर्टेड गाड़ियां इसलिए ज्यादा बिक रही हैं क्योंकि उनकी 1000 सीसी के अंदर कंपैरिजन में आपके पास कोई गाड़ी नहीं है। अगर आप देखें तो अगर सिवाय मेहरान के और एक आध गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं है। मेरी सिर्फ ये दरखास्त है, एक चीज पर टैक्सेस कम करें, दूसरा अगर हाइब्रिड गाड़ियों पे मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में हो तो इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। बस मेरा ये कहना है। अच्छा याया साहब, इसमें ये भी तो बता दें, फिर आप अगली दफा कॉल करेंगे कि गाड़ियां बहुत हो गई हैं सड़क पे और हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और हमें बहुत से, लेकिन ये काम मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है एक्चुअली, ये काम नहीं, ये नहीं है। मैं तो आपसे वैसे ही एक सवाल कर रही हूँ। हाँ, नहीं, आप ये पूछ रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये गाड़ियां हम किस तरह रोड पे आएंगी। बिल्कुल, ये देखें इंफ्रास्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन इतना है। देखिए ट्रैफिक मैनेजमेंट, आज अब मैं आपको बताऊँ, यूरोप आप देख लें, इंग्लैंड देख लें, वहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। टोक्यो में इससे ज्यादा ट्रैफिक है, लेकिन फ्लो ऑफ द ट्रैफिक वो जारी रहता है। ये जब तक आप रोडों को सही नहीं करेंगे, ट्रैफिक को ट्रैक पे चलाना नहीं शुरू करेंगे, ये मसला नहीं होगा। ये जिम्मेदारी, थोड़ा अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं करेंगे। अपने आप को मुनज़्ज़म, देखिए ये बता दूं, ये थोड़ी सी मेरी बात सुन, मुनज़्ज़म इसी सूरत में जब कानून सख्त होता है ना, सऊदी अरब में आज आप सिग्नल तक तोड़ते हैं तो 3000 dirham जुर्माना है। अगर आप इससे इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो खुद ब खुद लोग मुनज़्ज़म हो जाएंगे, मैं आपको बता दूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें यंगर जनरेशन पे तो बड़ी तनकीद होती है, सारे सिग्नल तोड़ने के हवाले से, सारी जो एडवेंचर है सड़क पे करने के हवाले से और सब कुछ। अच्छा, एडवेंचर के नाम पे वो ये कर रहे होते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपके लिए सवाल चेंज करूँ, मुझे ये बताओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की हम फर्स्ट सेगमेंट में भी बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास गाड़ियां हैं, ज्यादा हैं, कम हैं, बाइक्स ज्यादा हैं, क्या लगता है आपको? बाइक्स ज्यादा हैं। अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएं तो गाड़ियां भी हैं, बाइक्स भी हैं, बराबर की तादाद है उनकी अपनी स्टूडेंट्स की पर्सनल गाड़ी है, स्टूडेंट्स की पर्सनल गाड़ियां हैं। अच्छा, उनके पास ये फैसिलिटीज हैं, उनके पेरेंट्स देते हैं या पर्सनल कर रहे होते हैं। मेरा खुद जो ट्रैवल है वो ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से होता है, तो मेरा तो वहाँ से हो रहा है। तो लेकिन मैं किस तरह से, मुझे लगता है कि यूजुअली मेल स्टूडेंट्स के पास गाड़ियाँ होती हैं, फीमेल को तो कोई ना कोई भाई को जो है वो फैमिली बाइक प्रोवाइड कर देती है। गाड़ी का यही है कि ड्रॉप करने के लिए लड़कियों को भाई होते हैं, अब्बू होते हैं, तो उन लोगों को फैसिलिटी दी नहीं जाती है। लेकिन ये कि लड़कों को जरूरत भी होती है उन लोगों की, और जो है वो उनको वो हैंडल भी कर सकते हैं। लड़कियों का सेफ्टी का प्रॉब्लम होता है, फिर रिपेयरिंग का प्रॉब्लम है, कुछ हो गया मसला तो वो नाजुक कलियां होती हैं लड़कियां, वो कहाँ ही काम कर सकती हैं। बड़ा ही कोई ड्रामाई जुमला आया है। आजकल की ऐसी नहीं है लड़कियां, सब काम कर सकती हैं। लेकिन मैं भी जब अपनी अर्ली स्टेज पे थी, आपकी तरह स्टूडेंट थी, तो माय पेरेंट्स डिडंट अलाउ मी कि मैं गाड़ी लेके निकलूं, या मेरे फादर जो हैं उनको बड़ा वो था कि अल्लाह ना करे तुमसे कोई हादसा हो गया तो फिर मैं किस तरह हैंडल करूंगा। सेफ्टी का प्रॉब्लम, लड़कियां एकदम से बहुत ज्यादा जो है वो नर्वस हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, बहुत सारी लड़कियां बोल भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को बहुत शौक भी होता है गाड़ी चलाने का। वो कुछ लड़कियां यहाँ मौजूद है लग रहा है। अच्छा, हाँ, लेकिन मेरा शुमार में नहीं होता, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बात करनी आपने, देखा, मुझे पता था। जी सर, ये जितनी डिस्कशन आपने सुनी और याया साहब की खास तौर पे उन्होंने कहा टैक्सेस का बड़ा प्रॉब्लम है और छोटी गाड़ी को बहुत उन्होंने फोकस किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई शख्स बाइक से गाड़ी पे अपने आप को, अपनी फैमिली को ट्रांसफर कराना चाहता है तो पहले वो छोटी ही गाड़ी लेता है। तो हमारे यहाँ छोटी गाड़ियों पे भी जो टैक्सेस और जो उन्होंने प्रॉब्लम्स बताए उनको आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि एक चीज को हम जो है कर लें
कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे एक इकोनॉमिक उस मुल्क में है जहाँ पे तकरीबन जो है वो डेमोग्राफिकली जो लोग हैं वो लेबर मार्केट में एंटर होते हैं, कोई 20 से 25 लाख जिनको हर साल रोजगार की जरूरत होती है। तो इम्पोर्ट के बेस में जो हमारी तरजीहात हैं वो डोमेस्टिक के लिए इसलिए ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यया साहब के साथ जो भी लोग इनके साथ की नजदीकी रिश्तेदार भी होंगे वो भी उस लेबर मार्केट फोर्स का हिस्सा बनेंगे जिसको एब्जॉर्ब करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अब बात आती है टैक्सेस की, तो रीजन में हमने बड़ा ही जिसको कहना चाहिए एनालिसिस की है कि आया क्या पाकिस्तानी गाड़ियों की कीमतें रीजनल इवन इंडिया के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो अगर हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी कीमत ज्यादा नहीं है। अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट हो सकती है तो वो सिर्फ टैक्सेस के हवाले से हो सकती है। ठीक है, क्योंकि गाड़ियों के ऊपर जो है वो एक यूनिवर्सली डेवलपिंग कंट्रीज में ये पॉलिसी होती है। टैक्सेस ज्यादा इसलिए होते हैं कि जो आपने अभी बात की, लोग फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बातें करते हैं, एनवायरमेंट पोल्यूशन की भी बातें करते हैं। डेवलप कंट्रीज में 1000 के ऊपर जो हमारे मुकाबले में यानी 5 से 6 गुना ज्यादा है। जैसे पाकिस्तान में हर 1000 आदमी के ऊपर कहा जाता है कि 10 गाड़ियां तकरीबन आ रही हैं। इंडोनेशिया में तकरीबन 80 गाड़ियां आती हैं। अच्छा, ब्राजील में 245 गाड़ियां आती हैं हर 1000 लोगों के पास। ये बढ़कर कोरिया में आप चली जाएं तो ऐसा लगता है कि हर आदमी के पास एक गाड़ी है। जापान में आप जाएं तो यही हमें जो है रेशो नजर आता है। ठीक है, मगर इस रेशो के साथ साथ उन्होंने दूसरी डेवलपमेंट की पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन हैं, आपने सुना होगा लंदन में अंडरग्राउंड है, तो बहुत सारी कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। इस पॉइंट को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, लेकिन एक कॉलर है और ब्रेक है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी 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 हेलो हेलो, क्यों हम हमारी आवाज सुनते हैं? हेलो, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? ये अपना जो विद होल्डिंग टैक्स है गाड़ियों पर स्पेशली, तो इस विद होल्डिंग टैक्स के बारे में वो कह रहे थे कि ये रिफंड वगैरह हो जाता है, इस सिलसिले में बात करनी थी। अच्छा, आपने आज तक इनकम टैक्स फाइल कराई है अपनी? हाँ जी, हाँ जी। है? कब कराई? बकायदा रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं। रेगुलर करवाते हैं, ठीक है। हम ऑन एयर बताते हैं आपको इसके बारे में, ठीक है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और ये जो टैक्स रिटर्न की बात की और विद होल्डिंग टैक्स की भी कैसे रिटर्न हो सकता है इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि गाड़ी सबके लिए में ये भी तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। इस बारे में हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे गुप्तो हर लम्हा बाखबर खबर उनकी होशियार या फिर खेल के मैदान से सारा दिन प्रैक्टिस फिर सब मुकाबले दुनिया भर के टूर खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजिरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें जो मोबाइल ऐप तो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है, सिर्फ एक क्लिक की पूरी खबरें हर वक्त
वेलकम बैक। और गाड़ियों के हवाले से हम बात करें, और क्योंकि हमारे पास 2 फीमेल गेस्ट यहाँ पर मौजूद है जो कि अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, और ब्रेक पे जो है दोनों बहुत मजेदार बातें कर रही थी, तो मैंने कहा ऑनियर ही इनसे ही बात पूछूंगी। पैनल पर से भी हमारी एक इनपुट आया, उन्होंने कहा कि खवातीन जब ड्राइव कर रही होती हैं, खवातीन यूजुअली इसलिए भी बैकफुट पे होती हैं क्योंकि उनको लगता है कि सड़क पे बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो एनवायरनमेंट हमारे यहाँ ऐसा है या मिजाज ऐसा है लोगों का, वही बात कि पहले तो वो समझते हैं कि अगर कोई गलत किया या कोई गलती से गाड़ी चला भी रहा है ना, तो पीछे बैठे हुए जो भी बैक पे गाड़ी होती है वो कहते हैं इसमें देखना कोई लेडी होगी, इस वजह से गाड़ी ऐसी चल रही है। तो ये जो हमारे यहाँ एक मिजाज बना लिया गया है, इससे कितनी परेशानी होती है, और फिर आप लोग बाकी परेशानियों का भी जो जिक्र कर रही थी, आप शुरुआत कीजिए आप दोनों फिर। नहीं, एक्चुअली जब भी मैं लेडी इंस्ट्रक्टर जो हमारी ड्राइवर्स होती हैं उनके लिए मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आपको नोहा होनी चाहिए गाड़ी की, कि आप गाड़ी जब लेके निकल रहे हो तो उसके अंदर इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये सारी चीज़ें जो गाड़ी या रेडिएटर में पानी है या नहीं, या कुछ ऐसी प्री नॉलेज जिसको आप कहते हैं वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जी आपने फर्स्ट गियर सेकेंड गियर जैसा भी लगता है वो बस आ गया आपको और आप गाड़ी लेकर निकल गए। तो कोई भी चीज़ में सिर्फ गाड़ी की बात नहीं कर रही, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उसको करने से। मेरे हस्बैंड ने जब मुझे गाड़ी दी तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें सिखाई ना, कि इसके अंदर देखो ये चीज़ ऐसे होती है, ये मसला ऐसा हो जाता है, या कभी ट्रबल शूटिंग हो तो CNG से पेट्रोल पे कैसे कन्वर्ट करोगी, या फिर टायर बदल लेती हैं आप, ये भी सवाल है। वो उसके लिए बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, जहाँ कहीं आपका टायर, तो वो सारे भाई बदल देते हैं मिलके टायर। हाँ, आप बस खड़ी हो जाए बोनट खोल के, फिर तो सारे लोग आ जाते हैं। ये पाकिस्तान में ये चीज़ अच्छी है कि औरतों के लिए माशाल्लाह इंस्टेंट एक मदद के लिए। और फिर भी एक यहाँ पे पॉइंट कहूंगी कि अभी जो जिस तरह का माहौल है ना, तो मर्द औरत सब इतने बिजी हैं कि हेल्प कौन करे आके, सब अपने रश में। तो खवातीन को खवातीन को होनी चाहिए हर चीज की नोहाओ कि किस तरह से किया जाए, लेकिन गाड़ी का टायर तो चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन आप बस और अगर आप गाड़ी का टायर चेंज कर रही होंगी तो आपके इर्द गिर्द मेरे ख्याल में मोबाइल्स होंगे जो फिर बाद में आप सोशल मीडिया पे होंगे कि देखिए हमारे यहाँ खवातीन जो है वो टायर भी चेंज करने लगी, जबकि कोई अनोखी बात नहीं। मदद से ज्यादा वो सोशल मीडिया का फिर वो एक दौर शुरू नहीं, लेकिन आपको यूथ से कॉन्फिडेंस ना, ये तो एक पार्ट है, करते रहे अपलोड, क्या है, आप अगर मुनासिब तरीके से कर रही हैं तो करें। और क्या, सो मेनी अदर प्रॉब्लम फैमिली होती है, वायरल हो जाए कोई चीज तो फिर आपका मूव करना सोसाइटी में मुश्किल होता है। अगर मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ तो मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, वो मुझे पॉइंट करेंगे इस चीज की वजह से। मैं जॉब करती हूँ तो वहाँ पे भी इसी चीज से मेरी पहचान होगी ना। फिर अगर तो ये प्रॉब्लम्स हैं, लड़कियों के लिए इन चीजों का प्रॉब्लम है कि वो एक इमेज उसकी बन जाए तो उसको इमेज का बहुत ख्याल करना होता है हम खवातीन को, हम लड़कियों को। तो इमेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तमाशा नहीं बन सकते, हमें खुद से इस एनवायरनमेंट में खुद से अपने आप को सिक्योर करना है, हमें पता होना चाहिए क्या चीजें हैं, कोई सिचुएशन हो जाती है तो उसे हैंडल कैसे करना है। हाँ, ये बात आपकी सही है। जैसे आपने कहा कि हस्बैंड ने आपको पूरा तरह से रेडी किया हुआ, तो बहुत अच्छी बात है ये कि आपको आप हर सिचुएशन में हैंडल कर सकती हो। गाड़ी खराब जाएगी तो आप परेशान नहीं होगी, आप उसको फौरन। लेकिन भाई ये चीजें जगह सब, लेकिन उसके बावजूद भी आपका अपना एक पर्सोना होता है, आप डंके की चोट पे बाहर रहे तो फिर उसके बाद कोई आपको कुछ नहीं करता। आपके साथ कोई जब आप खुद फील करोगी ना कि ये सारे इश्यूज हैं और ये यूं हो सकता है, मेरा तो यहाँ उठना बैठना मुश्किल हो सकता है, तब लोग आपका उठना बैठना मुश्किल बनाएंगे। जब आप ये सोच लोगी ना कि कौन है जो मेरा उठना बैठना मुश्किल करेगा, तो फिर आप ठीक है ना, परवाह करी जाए तो फिर हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, गाड़ियों के बारे में मैडम साहब पूछना था। जी जी, बताइए, फरमाइए। कि ऐसा कोई निजाम हो हर गरीब आदमी गाड़ी ले सके, टैक्स कम से कम हो। कितने पैसे प्राइस हो बताएं आज आप। होनी चाहिए कम से कम 1 लाख तक। 1 लाख रुपए, सही है, ठीक है। वो छोटी गाड़ी, वो इंट्रोडक्शन से आया ये 1 लाख रुपए जहन में। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं सर से कि 1 लाख रुपए में क्या कभी कोई गाड़ी मिल सकती है, बेशक 2 लोगों के लिए हो कि सिर्फ 2 लोग उसमें बैठ सकते हैं, ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर दो लोगों के बैठने की बात है, आपके पास जो है जिसको कहना चाहिए
बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल। पाकिस्तान में आप देखेंगे पिछले 5 सालों में नहीं हो गाड़ी ही, बाइक नहीं ना, हो गाड़ी ही। मिनी का अभी एक्सपो सेंटर में भी तो लगा था। बात की तो मौजूदा इम्कानात में जो है वो यानी 1 लाख के चौथे हिस्से में जो है वो मोटरसाइकिल। उधर जो बात की जिससे कि आपने शुरुआत की नानो वगैरह, तो मैं थोड़ा सा फिर एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे पाकिस्तान में हम कहते हैं कि मिडिल क्लास की तादाद बढ़ेगी, उनकी इनकम जो है, क्योंकि तमाम गवर्नमेंट्स के मेरा ख्याल है कि अवलिन तरजीहात में यही होता है कि वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से लोगों की एक जो होम टेक इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, और वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फिलोसफी होती है। जैसे जैसे बढ़ती है उस लिहाज से लोगों के पास जो है वो उन इस्पात के जरिए इस गाड़ी खरीदने की जो है वो एक स्ट्रेंथ आती है। अब तो कंपनियों ने भी जो है वो लोन्स देना शुरू की हैं। ठीक है। तो बैंक्स भी जो है वो कंज्यूमर इकोनॉमी के हवाले से काफी पैसे जो है, आप देखें, आप तो आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे, लोग आपके पीछे आएंगे कि क्या आप 4-5-6 लाख रुपए की पुरानी गाड़ियों के ऊपर फाइनेंसिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये ट्रांजिशनल पीरियड है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, जैसे जैसे मिडिल क्लास की इनकम जो है बढ़ेगी, वैसे वैसे जो है मेरा ख्याल है कि इस कंज्यूमर इकोनॉमी में बैंक अपना हिस्सा बढ़ाएंगी और उसको सादा करेंगी। इंटरेस्ट रेट वैसे भी पाकिस्तान में इस वक्त कम है। ये थोड़ा सा एक जिसको कहना चाहिए कि एक इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आहिस्ते आहिस्ते, मुझे याद है कि कोई 10-15 साल पहले पाकिस्तान में 1 लाख मोटरसाइकिल चलती थी, आज 2 मिलियन 20 लाख बन रही हैं। पाकिस्तान में अब गाड़ियों शोर में भी बहुत जा रही है। पाकिस्तान में इस तादाद बढ़ गई है, गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, इम्पोर्ट बेस भी बढ़ रही है, लोकल भी बढ़ रही है, सीपैक की एक्टिविटीज के हवाले से और बढ़ेंगी, बेरोजगार स्कीमों के हवाले से लाख गाड़ियां जो है गवर्नमेंट जो है बगैर मार्कअप के लोन्स दे रही है। तो इससे मेरा ख्याल है कि आहिस्ते आहिस्ते ये जो नंबर ऑफ व्हीकल्स पर 1000 में इम्प्रूवमेंट होगी। वैसे अब तो सड़क पे जो बाइक जा रही होती है तो बच्चे बताते हैं फलां की मोटर बाइक है। आपसे सवाल पूछा गया था जी, सर एक और कॉलर है, उसके बाद एक साथ जवाब दे दीजिएगा। मोटर बाइक पर बड़ी सारी चीजें जहन में आ गई हैं, तो वो जो लोगों को लगता है ना कि हैसिल भी कर रहे हैं, तो वो सारे जो है इन शोज की बदौलत ही आए हैं। तो बहरहाल अगर इसी तरह शोज में गाड़ियां भी इस तरह मिलने लगी तो शायद और ज्यादा बढ़ जाएंगी। गाड़ियां मिलती हैं लेकिन कम। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं रियाज बोल रहा हूँ गोधरा से। जी रियाज साहब, एक तो ये गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स वगैरह है ना, इसमें थोड़ा रिलीफ दिया जाए, और दूसरा ना कोई ऐसे इदारे बनाए जाए जो हमें तरबियत दें कि सही माने हम ड्राइव कर सकें, गाड़ी को पार कर सकें और गाड़ी लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा कर सकें। ठीक है। अभी जैसे ये मोटर बाइक बेशुमार हो रही है, तो आप जाए तो अगर मार्केट में जाते हैं या गलियों में बाजारों में, तो आपको जहाँ बजा मोटर मिलते हैं, रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग कोई अवेयरनेस नहीं है, 4 आदमी बिठाए हुए हैं, 4 आदमी बिठाए हुए बाइक पे, बिल्कुल सही है। हाँ, तो ट्रेनिंग हमारी जो है हर जगह बड़ी कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल जनरेट मेरे जहन में हुआ है कि हमारे पास ये जो भी हो रही होती है मसाइल, जैसे गाड़ियाँ, एक गाड़ी पे जो है वो 4 लोग हैं, बाइक के ऊपर गाड़ी जो है वो कहीं पे भी पार्क कर देते हैं, तो ये मेरे ख्याल से कानून हमारे पास जो है लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। हमारे जो कानून के जो रखवाले हैं वही उसको तो हमें नहीं करवा रहे होते फॉलो। उनको हमारे यहाँ बड़ी पचास में बस मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, 10 रुपए देके ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी वाले ने फारिग कर दिया। तो अब मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी, मुझे अजीब सा लगा, 10 रुपए में उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। मतलब ये हमारे जो कानून के रखवाले जो हमें गाइड करने वाले हैं वही इस चीज को तो हमें एनकरेज नहीं कर रहे। अभी का है ये बिल्कुल रिसेंट है मेरा एक्सपीरियंस। अब मैं तो भाई इसमें बिल्कुल रिसेंट, ये बहुत अजीब सी बात, मेरे लिए खुद बहुत अजीब सी बात है। मुझे मैं शर्मिंदा हो रही थी कि 10 रुपए, आजकल 20 रुपए और 5000 का नोट भी एक जैसा लगता है। कंफ्यूजन पर ये रियलिटी है, ये आपका हाल है। ट्रैफिक पुलिस यही कर रहे होते हैं, लड़के अगर सबको नहीं कह सकते, जो अगर लड़के हैं वो बाइक चला रहे होते हैं तो वो उनको रोक कर उनको मना नहीं करेंगे, लेकिन वो उनसे जो वो पैसा वसूल करके इनको फारिग कर देंगे। तो ये तो हमारे कानून की वजह से है ना। अस्सलाम वालेकुम हेरा। वालेकुम सलाम जी, मैं हेरा बात कर रही हूँ कराची से। हाँ जी हेरा, बताइए। मुझे ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करनी है।
ये बहुत ज्यादा जो होता है रोड के ऊपर रश वगैरह होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मैं सभी स्टूडेंट्स हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो मुझे ये बात कहनी थी कि जब हम मतलब रोड पे निकलते हैं तो गाड़ियों का इतना ज्यादा रश होता है कि उधर पॉल्यूशन कॉज कर रहा था, उसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो जब हम लोग निकल रहे होते हैं स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए, तो हम टाइम पर अपने नहीं पहुँच पा रहे होते। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि इसके ऊपर भी थोड़ा देखा जाए, इसके ऊपर भी थोड़ा मैसेज वगैरह दिया जाए। हमारे ख्याल में क्या किया जाए ये तो बताओ। इसके ऊपर एक्शन लिया जाए जो भी हो सके, मतलब ठीक है, लॉ की पाबंदी अगर हो सके तो उससे भी शायद ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। विद होल्डिंग टैक्स का भी जो सवाल था वो भी जवाब देखिए, अगर ये रिटर्न भरते हैं तो गाड़ियों को तो छोड़ें, ये इवन जो मोबाइल और सिम कार्ड वगैरह के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स है इसको भी ये क्लेम कर सकते हैं। ओके, यानी हर वो चीज जो आपसे एडवांस में ली जाए, वो टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त वो एक किस्म का आपके पास एक बैंक होता है क्रेडिट, और आपकी जो भी ड्यू टैक्स लायबिलिटी है उसमें से वो माइनस होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो क्रेडिट उस ड्यू टैक्स टू बी पेड से ज्यादा होता है तो आपका रिफंड भी क्लेम बनता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि आइंदा जब वो अपना रिटर्न फाइल करें तो इन सब चीजों को, यानी फकत गाड़ी खरीदने के पर बिल्डिंग टैक्स नहीं, हर जगह जहाँ जहाँ पे ये जैसे इन्होंने बताया मोबाइल फोन है और इस तरह की चीजें, इवन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में जो कटौतियाँ होती हैं कैश विड्रॉल्स के ऊपर, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो भी आप क्लेम कर सकते लेकिन हैं। इसके लिए देखिए बहुत ज्यादा ये चीज अप्रिशिएटेबल उस वक्त होगी जब आप एक टैक्स पेयर हैं। हम बीइंग पाकिस्तानी बहुत सारी जगह पर हम अर्न कर रहे होते हैं बट हम टैक्स अपना फाइल करते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता होता है कि जी टैक्स कट जाएगा, छोड़ो। मतलब एक स्मॉल स्केल के ऊपर जो एंटरप्रेन्योर है वो भी टैक्स पेयर नहीं है। वो कहते हैं कि छोटा सा बिजनेस है, इसके अंदर अगर हमने अपने आप को रजिस्टर करवाया तो हमें पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आप अपने आप को फाइलर शो करते हैं या टैक्स पे करते हैं, हुकूमत को दे रहे हैं, तो हुकूमत आपको फिर रिटर्न भी देती है। अच्छा, टैक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सड़कें बन जाएंगी और आपको फायदे मिलेंगे, बल्कि टैक्स से आपको भी प्रिविलेज मिलता है बहुत सी जगहों पर। और इसको अगर आप थोड़ा बता दें, क्योंकि आज टैक्स की ही बात हो रही है कि टैक्स की चोरी या टैक्स के हवाले से टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराते हैं या बहुत कुछ है, लेकिन उस वक्त से डरे। अब जबकि हो भी गया है, मुझे कहीं कहीं पे पता चला है कि जब आपके आईडी कार्ड का नंबर ही आपका एनटीएन नंबर है और फिर उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, और फिर टैक्स पेयर है अगर आप, तो आपका सैलरी पे टैक्स कम करता है और बाकी चीजें भी होती हैं। उसके हवाले से अगर थोड़ी सी आगाही दे दें। इसीलिए एक जिसको कहना चाहिए कि टैक्स पेयर का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हमेशा एक नेशनल कॉन्सेप्ट के तौर पर लेना चाहिए कि इससे इस मुल्क को क्या फायदा हो रहा है। थोड़ी देर के लिए बहुत ही सादे तरीके से मैं बात करूं कि अगर पाकिस्तान में जिनको टैक्स देना है अगर वो इस सिस्टम का एक हिस्सा बनते हैं तो वो सियासी बातें कि हमने IMF के से भीख मांग ली, हमने कशकोल सामने रख दिए, हमने हर उस मुल्क जो हमें किसी तरीके से, इसको मैं बहुत सलीस उर्दू में कहूँगा, खैरात दे सकता है, तो ये सब इस्तेलाहें बिल्कुल एक बंद गली की तरह है। अगर पाकिस्तान में खुद लोग जो है इस सिस्टम का हिस्सा बने। ये दूसरी बात है कि लोगों को शिकायतें ये होती हैं कि हम इस सिस्टम का अगर हिस्सा बन रहे हैं तो हमें क्या पीने का साफ पानी मुहैया होगा, क्या हमें बिजली जो है 20 घंटे के बजाय 20 घंटे मिलेगी, न मिलने के बजाय मिलेगी। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी लोगों का एक ट्रस्ट खरीदने के लिए कि वो क्यों इस टैक्स सिस्टम का मोटिवेशन उनको देनी होगी, मोटिवेशन और सप्लाई साइड जो हुकूमत की है, हुकूमती इदारों की, कि लोगों को पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रास्ते, ट्रांसपोर्ट और एक रहने के लिए मुनासिब जगह, क्योंकि ये लोगों का हक है। एक डिसेंट लिविंग जो है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी। सारी दुनिया में आप देखें कि एक डेवलप कंट्रीज में कॉन्सेप्ट यहाँ तक जाता है कि बेरोजगारी में भी लोगों को अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये सब चीजें उस वक्त मुमकिन है जब टैक्सेशन का सिस्टम हम एक्सपेंड करेंगे और लोग जो है जो टैक्स देना चाहिए जिनको, क्योंकि थ्रेश होल्ड तो बने हुए ना हमारे पास 4 लाख रुपए के, अगर उसके बाद कोई थ्रेश होल्ड है तो वो टैक्स के दायरे में उनको आना चाहिए। ये कौमी खिदमत होगी मेरे अपने ख्याल में कि ये 4 लाख सालाना है, 4 लाख पर मंथ है, मतलब इसको जो है ना सालाना की बात जी जी। तो ये जो है ना ये सिस्टम जो है इसमें वो मतलब कि थोड़ा सा इजाफा करते हैं इन्फ्लेशनरी इफेक्ट से। मेरा ख्याल है कि उससे क्या होगा कि इन सारी डिमांड्स जिसके लिए लोग शिकायतें करते हैं
हैं। ठीक है, हम शिकायतें तो कर ही रहे हैं, मगर इन शिकायतों के सामने सोल्यूशन की जरूरत होती है, और वो सोल्यूशन यही है कि हम खुद अपने आप को इस सिस्टम का एक हिस्सा बनाते जाएं। हाँ। और एक चीज मेरा ख्याल है कि मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि कुछ सर एक कॉलर भी है, उनसे हम बात करते हैं। और वो जो हिरा ने बात की थी, पता नहीं क्या वो कह रही थी कि हम बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक बहुत होता है, वक्त की पाबंदी, कुछ मिली जुली उन्होंने बात की थी। तो अगर आपको समझ आइए तो आप जरूर उस पर कॉमेंट कीजिएगा। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं गाड़ी के हवाले से बात नहीं करना चाह रही, मैं काफी दिनों से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी कॉल लग नहीं रही। ठीक है, तो मुझे ना तो गाड़ी चाहिए, ना टैक्स माफ करवाने हैं। मेरा भांजा है छोटा 10-11 साल मुझे का। बात समझ नहीं आ रही आपकी, बताइए। हेलो, मैंने अर्ज किया कि मेरा भांजा है छोटा 10-11 साल का, तो वो सुनने बोलने की सलाहियत नहीं रखता। अच्छा ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गई है इस वक्त। जी, हिरा की भी बात कर रहे थे हम। हिरा का जो सवाल था वो ये था, वो एक बात कहना चाह रही थी कि हम जब अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहे होते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची एक बहुत बड़ा शहर है और उसमें जब सफर हम करते हैं तो घंटे घंटे का सफर होता है। वो जो घंटे का सफर है यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का, वो 2 घंटे का हो जाता है, सिर्फ इस वजह से कि सड़कें नहीं बनी हुई, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो ये हम स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा लॉस है, हमारा वक्त जाया हो रहा है रस्ते में हमारे। उसके बाद पोल्यूशन, हम पोल्यूशन से इफेक्ट हो रहे हैं, सेहत हमारी अच्छी नहीं रहती, थके आ रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, थके आ रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं, होमवर्क कब करें, अपनी प्रैक्टिस कब करें, जो तालीम हमें मिल रही है उसको हम लोग किस तरह से जो है वो रिवाइव करें, अपने जहनों में किस तरह से उसको रिपीट करें। तो ये सारे मसाइल है, वाकई ये बहुत बड़ा मसला है हमारा कि हम लोग जो है वो ये सफर की थकन, सफर की जो इतना बड़ा सफर है, इसको हम स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है ना सड़कों पर। स्टूडेंट्स कहते हैं ना हमारे लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो क्या करें इनके लिए? अलग सड़क बनाएं या क्या सिस्टम करें? में देखें, ये आप बताइएगा। बस देखें तो कराची यूनिवर्सिटी में बच्चों से लड़कियां लटक लटक के बाहर पूरी लटकी हुई होती है और फिर जाके कंडक्टर ने पीछे से सहारा दिया होता है कि कोई गिर ना जाए। तो ये हशर हुआ होता है बच्चों में इस तरह से भर के। उनकी भी मजबूरी है किस तरह से बस आ रही है, तो आप लोग भी तो देखो ना कि अगर इतनी भर गई है तो उसमें क्या और कहाँ से बसें हैं। एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट में आपने जाना होता है, उसके अलावा दूसरा कोई पॉइंट नहीं है, वो सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं। तो आपको वही पॉइंट मैसर है, उसी को यूज करना है। डिफरेंट एरियाज के अपने अपने पॉइंट्स है, तो आपको वो यूज करना है। अब आप उसमें भर के जाएं, आप उसको मिस कर दें, फिर दूसरी बस ले लें, वो फिर टाइमिंग का इशू, क्योंकि बस वाले का जो कराची जैसे की बसेज है उनकी अलग टाइमिंग है, बाकी बसों की अलग टाइमिंग है, वो रास्ते में रुकती हैं, उनकी गाड़ियों का हशर क्या है। अब हम यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो हमारा हशर वो स्टूडेंट वाला नहीं रहता, फिर वो सफाई वाला बन जाता है। हमारे अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं शमशीर बात कर रहा हूँ। हाँ जी, फरमाइए। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और अब आइंदा से मैं आपसे बहुत मोहब्बत से ये बात सबसे कहना चाहती हूँ कि आइंदा से अगर मुझे अपने अस्सलाम वालेकुम और कौन बात कर रहे हैं की आवाज़ वापस आएगी तो कॉल आपकी वहीं ड्रॉप हो जाएगी। तो आप इतनी देर वेट करते हैं, आपके पैसे भी खर्च होते हैं, सारा कुछ होता है, आप मुझे मेरी आवाज़ सुनवाते हैं, फिर अपनी आवाज़ टीवी से सुनते हैं, ये बड़ा ही कोई अजीब इशू है। खुदा के लिए टीवी का वॉल्यूम यानी टीवी की आवाज़ को जब आप 0 पे कर दें तो मुझे कॉल करें, या आप उस जगह से निकल जाएं, दूसरे कमरे में जाएं, फिर मुझे कॉल करें। घर वालों को अपनी आवाज़ सुनवाएं। एक साथ दोनों मजे नहीं हो सकते कि मुझसे बात भी हो जाए और टीवी से अपनी आवाज़ भी सुन लें। और मेरे ख्याल में अब अकल रखने वाले लोगों को ये बात समझ आ जाएगी। तो प्लीज इतनी तो अकल हमें होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अब तो मैं वाकई इस बात से काफी डिसअपॉइंट हुई हूँ। हमारे साथ एक और कॉलर है, मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बात कर रहा हूँ चकवाल से। मेरे 3 सवाल है आपसे। जी। कि गाड़ियाँ लेने के लिए या गाड़ियाँ बेचने के लिए तो हर बंदा कहता है जी कि फलां गाड़ी आ गई, फलां गाड़ी आ गई। कभी किसी गाड़ियाँ बेचने वाले ने या जो ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज है पाकिस्तान का, उसने ये सोचा है कि ये गरीब लोग रोड क्रॉस किस तरह करेंगे? मेरा पहला सवाल है। अच्छा। दूसरा सवाल ये है कि कितने रोड के ऊपर खड़े होते हैं काफी देर तक, बुजुर्ग जो रोड क्रॉस नहीं कर सकते। क्या हमारे मुल्क में पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट पे गुजारा नहीं हो सकता है, या हर घर में गाड़ी लेनी बहुत जरूरी है?
ट्रैफिक पुलिस के हवाले से गुड़िया बात कर रही थी, मैं उसको आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस आप किसी जगह पे खड़े होकर साइड पे चेक कर लें कि मलक सफदर अगर बाइक पे बैठा हुआ है और हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उसका चालान होगा 300 रुपए का, और उसी रोड से पुलिस वाला हेलमेट के बगैर गुजरेगा और उसको इंडिकेट किया जाएगा कि भाई ये हेलमेट, वो एक ही जवाब देता है कि मलक साहब ये तो पुलिस वाला है। क्या पुलिस वाला पाकिस्तानी नहीं होता है और जो चलान करवा रहा होता है वो इंडिया का होता है या किसी और मुल्क का होता है, उसको 300 रुपए ठीक है। तीसरा सवाल भी बता दें जल्दी से। और तीसरा सवाल ये है कि प्लीज अगर गाड़ियां बहुत ज्यादा मंगवानी है तो ये रोडों को चेक कभी, ये जो बड़े बड़े लोग यहाँ कर बैठते हैं, क्या आपके टीवी पे कभी कोई गरीब आदमी आकर बैठे आपके टीवी प्रोग्राम में? कभी बैठे हैं भाई, मेरे तो पूरे करियर में हर तरह के लोग बैठे हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो हर क्या गरीब क्या अमीर क्या सभी बैठे हैं। अब ये थोड़ी कोई बात है कि सब अमीर बैठे होते हैं, या आपको क्या पता कि हम या हमारी टीम में जो सारे लोग हैं वो अमीर हैं नहीं हैं, मुतवस्सित घरानों से हैं, तो ये बात नहीं है। लेकिन जो आपने सवाल किया, एक तो इन्होंने कहा कि जी इतनी गाड़ियां आ जाएंगी तो सड़क क्रॉस कैसे होगी। देखिए एक बात बड़ी मुनासिब है, ये होता है एक ट्रैफिक मैनेजमेंट जी, एक लोकल गवर्नमेंट्स की एक मुशाहिदात होते हैं। मेरा ख्याल है कि हर उस रास्ते के ऊपर यहाँ पे जिन औकात में गाड़ियों की एक डेंसिटी जिसको कहना चाहिए मूवमेंट बढ़ जाए, वहाँ पे ही राइट एक ओवरहेड जो है वो पेडेस्ट्रियन भी बनने चाहिए। फिर भी नीचे ही खड़े रहते हैं, फिर भी नीचे ही खड़े रहते हैं। मगर उसूली तौर पे इनके इस सवाल का जवाब नहीं। अब दूसरी बात है कि वो जो कह रहे हैं कि वो कहता है कि जी मैं पुलिस वाला हूँ, हेलमेट नहीं, तो मेरा ख्याल है कि ये खुद लम्हे प्रक्रिया है। कराची में DIG पुलिस ट्रैफिक को हमने बड़ा मुतहरिक देखा है। मेरा ख्याल है कि जरूर उस तक हम ये बात पहुंचाएं कि अगर ये पाबंदी शहर के ऊपर है तो उनके लोगों के ऊपर उससे ज्यादा पाबंदी होनी चाहिए। चलिए ये मामला तो आपका हल हो गया, दोनों मामला हल कर दिए। तीसरा उनका सवाल था कि सड़कें जो है वो बनी हुई नहीं है। जी मेरा ख्याल है कि वो शायद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीबों की बात की, तो मेरे अपने ख्याल में कि हमने तो प्रोग्रामों में कोई इस लिहाज से नहीं देखा कि आप कोई पहले पूछते हैं कि आपकी इमारत की बुलंदी कितनी है या आप किस गाड़ी में आए। पिछले दिनों मुझे एक गेस्ट ने कहा आपको तो नहीं पता ना हम किस गाड़ी में आए हैं। बल्कि मैं इनको ये कहूँगा कि जितने भी एजिटेशन या एक किस्म का क्रिटिकल के टॉक शोज होते हैं उसमें लोग एक आम आदमी को सड़क पे दिखाकर आप भी जाती हैं, बातें करती हैं, उनसे पूछती हैं क्या मसाइल हैं। ये कह रहे हुकूमत के ऊपर जितनी भी क्रिटिसिज्म होती है वो मैंने देखा है कि उसके शोज जो है वो शाम को जारी सारी हो जाते हैं, होते हैं, घूमते रहते हैं फील्ड वाले, तो उनकी जो मरकजियत होती है वो मलिक साहब, अल्लाह करे मलिक साहब हो गई ना हो, उन्होंने बात की मगर उनकी मरकजियत वहीं पे है। हाँ, और अब तो आप रमजान मुबारक की ट्रांसमिशन देखिए, किसके बगैर मतलब जिन लोगों का आपने तस्करा किया उनके बगैर तो इनकम्प्लीट है। सब उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिनके साथ कोई भी जिंदगी के मसाइल हैं, और उन्हीं लोगों के हवाले से कह रहा हूँ कि बजट के दौरान में मैं रोजाना हर चैनल पे देखता था कि गरीब का लफ्ज आता था कि हम गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जी हम गरीबों पे अभी रमजान का महीना है, आप देखें फ्रूट और ये वो 3 दिन की जो एक उसमें भी ये था कि हम गरीबों के लिए जो है ये चीजें महंगी हो गई हैं। ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में कि जिन लोगों को हम गरीब का लफ्ज इस्तेमाल न करें, मगर हम ये कहें कि होम इनटेक इनकम जिनकी कम है वो जरूर टीवी के फोकस में है। मेरा ख्याल है कि रोजाना ही हम तो देखते रहे, क्योंकि वो वाले जो गरीब आप फ्रूट वाले कह रहे हैं वो तो हम सब भी थे ना, तो हम सभी थे कि हमने 3 दिन की स्ट्राइक में हम कोशिश कर रहे थे कि 7 दिन आप लोगों ने किया ना, यूनिटी होनी चाहिए। आपने की थी 3 दिन की स्ट्राइक, तो फ्रूट चाट नहीं बनाई थी घर में? पहले से फ्रूट था फ्रिज में? नहीं। कुछ लोगों ने ऐसा स्ट्राइक भी किया था रात को खरीदारी करने की। इजाजत दें तो मैं कहूँ कि आपके प्रोग्राम में कुछ लोगों ने एक सवाल उठाया था कि जी इम्पोर्ट गाड़ियों की कैफियत बेहतर है लोकल्स के। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी इस वक्त मौजूदा जिनका एक हिस्सा है मार्केट में, वो टॉप के 4 मैन्युफैक्चरर्स हैं, और जो चीजें यहाँ बनती हैं वो उसको उसी स्टैंडर्ड के तहत जो है उसकी पैमाइश करते हैं कि वो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। बल्कि ये कहना भी मुनासिब समझता हूँ कि रोजाना अखबारों में आप देखेंगे कि कई सीरीज की गाड़ियों के लिए इश्तेहारात आते हैं कि इनका जैक खराब है, आप ले आए, इनके दरवाजे में जो है हिंज जो है वो सही फिट नहीं हुआ था, ले आए हम मुफ्त में। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कार वाश भी मुफ्त में करा ले। तो मेरे अपने ख्याल में कि जो चीजें
हमारे घर में बनेंगी, जिसको मैं मुकामी कहता हूँ, उसके लिए आपको स्पेयर पार्ट्स की जो है कभी परेशानी होगी। आप किसी छोटे दुकान पे भी जाकर ले सकेंगी और अपने मसाइल को दरवाजे के हद पे हल कर सकेंगे। मेरा ख्याल है कि ये एक पॉजिटिव चीज है। आपके प्लेटफॉर्म से करूंगी, बीइंग पाकिस्तानी हम लोगों का एक रुझान है कि हम लोग ज्यादातर फोकस इम्पोर्टेड चीजों के ऊपर कर रहे हैं। हमें अपने ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है, इवन दो कि अगर डोमेस्टिकली कोई चीज प्रिपेयर हो भी रही है तो लोग ज्यादा फोकस इसके ऊपर होता है कि जी हम इम्पोर्टेड बिकॉज रिलायबल है उनके दिमाग में। आई डोंट नो लाइक ये ब्रांड कॉन्शियस जो लोग होते हैं कि जी फला चीज हमने फला की ली हुई है, तो ये चीज एक तो रुझान कम होना चाहिए। हम जब अपनी चीजों को प्रमोट करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन में इजाफा होगा, जब हमारी प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो हमारी इकोनॉमी जो है वो हम अपनी माशियात लेवल के ऊपर उसको कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई चीज बन भी रही होती है, इन्वेस्टर ज्यादातर उसके ऊपर इनपुट नहीं लगाते क्योंकि वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की बनी हुई चीज कौन लेगा। आपको मैं एक बहुत नहीं, लेकिन गाड़ियों में ये मामला नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी बहुत अच्छी डिमांड है उसकी। हाँ, लेकिन मतलब लाइक हम लोग लेकिन एट लार्ज अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ यही सेंटिमेंट है कि कपड़े भी लेने मैं आप बिलीव करें कि अपने बच्चों के स्कूल का बैग में लेने के लिए गई थी